ਹੈਲੋ एवरीवन, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਚੇਤਨ ਭਾਰਤ ਲਰਨਿੰਗ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਨ ਯੋਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਇਕੋਨਮੀ PCS 2020 ਕੋਰਸ। ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੈਕਟਰ। ਸੋ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਪਾਰਟ 1 ਪਾਰਟ 2। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਲੇਆਊਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੈ ਕੀ। ਇੱਕ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬਾਹਰਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੋ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਏਗੀ ਔਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ BOP ਔਰ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟਸ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਠੀਕ। ਤੀਸਰਾ ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੰਸਰਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਪੋਲਿਸੀ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਰਿਫਾਰਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਪੋਸਟ ਰਿਫਾਰਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਜੋ ਕੋਰ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, IMF ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ 1 ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ 2। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟ 1 ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ। ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਲੈਵਲ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਲੌਜੀਕਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਕਿਵੇਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਸੀ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਦਿਸ। ਸੈਕੰਡ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਦਿਸ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਜਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਕੀ ਸੀ। ਥਰਡ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਦਿਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਨ ਵੀ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੇਰੀਅਸ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਵੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ। ਚਲੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ, let's see what is external sector to start with. So as the definition very easily puts it, the economic activities of an economy which take place in foreign currency fall in the external sector. बड़ा ही simple है।
इकोनॉमिक एक्टिविटी का की मतलब प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, एक्सचेंज नहीं। सो जो भी एक्टिविटीज इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में हो रही हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, ये सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। इसमें जो भी फॉरेन करेंसी के अंदर हो रही हैं एक्टिविटीज, दैट वी कंसिडर इन एक्सटर्नल सेक्टर। अब इसमें एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल डेट, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये एक्सटर्नल सेक्टर का पार्ट है जो हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक, अब इसको जैसे कि मैंने पहले कहा कि फर्स्ट टॉपिक जो हमें कंसिडर करना पड़ेगा अपनी वोकैबुलरी सेट करने के लिए, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर आप देखिए ये है क्या, इट इज अ स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट दैट कंप्राइजेस ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स इन ए गिवन ईयर। तो ये टेस्ट में भी क्वेश्चन था कि बीओपी होता क्या है ना। अच्छा, the term all transaction refers to the government as well as private transactions, दोनों के दोनों। Then the statistical statement is a double entry bookkeeping, so this is records of each transaction twice consisting of two opposite entries with equal values। की मतलब ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਂਟਰੀ ਸਿਗਨੀਫਾਈਜ਼ ਇਨਫਲੋ ਵਾਈਲ ਡੈਬਿਟ ਐਂਟਰੀ ਸਿਗਨੀਫਾਈਜ਼ ਆਊਟਫਲੋ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ। ਸੋ ਪੈਸਾ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਔਰ ਡੈਬਿਟ ਐਂਟਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੈ। ठीक है, फॉर एनी ट्रांजैक्शन बोथ एंट्रीज आर रिकॉर्डेड। तो जो एक भी ट्रांजैक्शन होंगी है एंट्री दोनों पासे पेगी, क्रेडिट वाले पासे भी पेगी, डेबिट वाले पासे भी पेगी। खैर ये तो आ गया था कॉमर्स वाला एंगल, टेक्निकल पार्ट। यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज की डिमांड की है सिर्फ इन्ना बस, जो तुसी अपने पेपर लिए तैयार करके जाना है, इट इज ओनली दिस मच कि इट इज अ statistical account of all economic transactions between the residents and non-residents of a country in a particular year, and all transactions here means government as well as private transactions। बस पेपर लिए तुसी इन्नी चीज पढ़ के जानी है, that's more than sufficient for you। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਸੀਪਟਸ ਐਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸੀਪਟਸ। ਸੋ ਯੂ ਸੀ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚ ਆਰ ਰੈਵਨਿਊ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਸੋ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸੀਪਟਸ ਐਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣੀਆਂ, which are capital receipts and capital expenditure। so याद करो फिजिकल सिस्टम के अंदर आप रेवेन्यू और कैपिटल का कॉन्सेप्ट बहुत चंगी तरह डिसाइफर किया सी, सेम कॉन्सेप्ट इत्थे भी लागू होना है। ठीक है जी, ओके। हुण जरा इहनूं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग सिस्टम के दो बेसिक पार्ट्स बनने ने, एक है करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। और ये पूरी कंट्री का अकाउंट है, एक बंदे का या एक सरकार का अकाउंट नहीं है, पूरी कंट्री का अकाउंट विज़-वी द वर्ल्ड इकोनॉमी है ना। सो ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲਸ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੀਓਪੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਆਈ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਅ broadened image for that same thing। If you just go for the current account, so what all are the parts of current account? Just look into that। So first is exports। exports ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ FOB, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਕਰੋ exports FOB। this means free on board। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, it basically means ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬੋਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਦੇਣ ਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਸਾਈਡਡ ਬਾय IMF, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨਿਟਰੀ ਫੰਡ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇਗੀ। ਦ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਆਲ ਡਿਸਾਈਡਡ ਬਾय IMF। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 100% IMF ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅਡੈਪਟ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ 100% ਡੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅਸ ਫ੍ਰੀ ਔਨ ਬੋਰਡ।
सो फ्री ऑन बोर्ड का मतलब अपनी जो इत्थों एक्सपोर्टर है उसकी जिम्मेदारी है शिप तक पहुँचाना या जहाज़ तक पहुँचाना जिहदे थ्रू उन्हें बाहर जाना। अगे उहदे होर की चीज़ां होंदियां जी, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ये तीन चीज़ां जो भी कोई चीज़ इत्थों बाहर जा रही है अपनी कंट्री तो या एक कंट्री तो दूसरी कंट्री जाती है तो उस चीज़ की कॉस्ट है, उन्होंने एक थां तो दूसरी थां ते ले जाण वेले रस्ते च कुछ खराब हुंदा है उन्होंने कवर करने लई इंश्योरेंस है, एंड तीसरे नंबर ते फ्रेट चार्जेस ने, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। नाउ imports are reported in the format of CIF, that is cost, insurance and freight. So anything we are importing from outside, we are utilizing these three components there, that is cost, insurance and freight. तीनों दे पार्ट एंड पार्सल होंगे, ठीक है। सो एक्सपोर्ट FOB, इंपोर्ट CIF। नाउ थर्ड कम्स योर ट्रेड बैलेंस विच इज एक्सपोर्ट FOB माइनस इंपोर्ट CIF और 1-2। याद करो आप जो NFIFA पढ़िया सी नैट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो उहदे विच भी ये ट्रेड बैलेंस की गल की सी। नाउ इंडिया वास्ते ट्रेड बैलेंस किस तरीके का देखो नेगेटिव फिगर्स आ रही हैं। सो ऑल दीज 2014 तो लैके ये नेगेटिव ही चलता चला आ रहा है ना। So since this is negative, we would say India has a trade deficit, है ना। फिलहाल ट्रेड डेफिसिट है, ये नहीं है कि अपना कभी सरप्लस नहीं होया, बट एनी हाउ वी हैव अ डेफिसिट हियर इन ट्रेड बैलेंस। कहने का मतलब कि एक्सपोर्ट करके आपां पैसे उन्ने नहीं कमा पाते जिन्ना ज़्यादा आपां इंपोर्ट कर लेने। सो अल्टीमेटली अपने जो फॉरेन एक्सचेंज है वो जा ही रहा है, आ नहीं रहा है, तो कमाई नहीं हो रही, ठीक है। ओके हम चाइना बारे बहुत जाने लिखना शुरू करता हूँ ना भी सब तो ज़्यादा इन्होंने जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है। नैक्सट है जी इनविजिबल्स। इनविजिबल्स दे विच की है, हुण देखो जो ए वाला पार्ट है ना ये सिर्फ गुड्स नू कवर करता है, दिस इज ओनली फॉर योर गुड्स पार्ट। इनविजिबल इज कंटेनिंग सर्विसेज, इनकम्स एंड ट्रांसफर्स। सो इनटैंजिबल ट्रेड उहदी गल करता है। सो सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफर का अलग तो पूरा एक नैट कट दिया। नैट इनविजिबल का मतलब की है हुण कुछ सर्विसेज शायद आप इंपोर्ट कर रहे होइए, कुछ सर्विसेज आप एक्सपोर्ट कर रहे होइए, सो इन्हां दा बैलेंस एक आ जाएगा। सो दैट विल बी सर्विसेज नेट। सिमिलरली देयर विल बी इनकम नेट, सिमिलरली देयर विल बी ट्रांसफर्स नेट, ठीक है जी। देन नेक्स्ट इज गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। नाउ बोथ ऑफ देम कंबाइंड टुगेदर विल बी शोन इन दी फिफ्थ कॉम्पोनेंट, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस, है ना। बट कितना पार्ट लेना, सिर्फ सर्विसेज वाला पार्ट इथों ले लेना है और ट्रेड वाला पार्ट इथों ले लेना है। सो दैट इज द गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। देन कम्स द करंट अकाउंट बैलेंस। करंट अकाउंट बैलेंस कम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट 3, दैट इज ट्रेड बैलेंस, एंड 4 इनविजिबल्स नेट। इन्हां दोनों ਨੂੰ जोड़ दोगे तो इट बिकम्स करंट अकाउंट बैलेंस। नाउ द पॉइंट इन इंडिया इज अगेन योर करंट अकाउंट बैलेंस इज गोइंग नेगेटिव। 2014-15 का भी नेगेटिव है और 2019-20 का भी नेगेटिव ही है। जो ये नेगेटिव है तो वी कॉल इट करंट अकाउंट डेफिसिट, जे पॉजिटिव होंदा तो वी विल कॉल इट करंट अकाउंट सरप्लस, ठीक है जी। सो एसेंशली वी हैव ए करंट अकाउंट डेफिसिट। सो इस तरीके आप एक टर्म हो आ जाती है अपने को करंट अकाउंट डेफिसिट। उत्थे की सीगा ट्रेड बैलेंस, सो इट सिंस इट केम इन नेगेटिव सो वी सेड इट इज ट्रेड डेफिसिट। जे पॉजिटिव होंदा तो आप कहते ट्रेड सरप्लस। इन्नी गल समझ आई। So I'm taking you back to the drawing board. So you see BOP the जो first अपना important part है that is your current account। और current account ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ basic concern अपना की आ रहा है, एक ਤਾਂ goods ਦੇ ਨਾਲ related aspect ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ invisibles ਦੇ ਨਾਲ related aspects ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। goods ਦੇ ਨਾਲ related ਕੀ ਹੈ ਜੀ, एक्सपोर्ट जिन्हों आप किस टर्म विच लिया FOB फ्री ऑन बोर्ड। दूसरा है इंपोर्ट जिन्हों आप की क्या कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। सो अलग अलग खर्चे जो पे या आप एज इट इज कमाइयां की सारा कुछ इत्थे लिखना है। तीसरा ये ही आ जाता है ट्रेड बैलेंस, राइट। सो दैट इज बेसिकली 1-2, that is trade balance. Then invisibles nu leke they have said it is net invisibles. Net means incoming and outgoing dono balance karke in terms of money. They will talk about your services, they will talk about your incomes, and they will talk about any kind of transfers. Transfers here would include basically you can think of remittances, the NRI remittances जो let's say बाहर कोई बंदा गया और अपने घरदिਆਂ ਨੂੰ पैसे भेजदा है, so that is the concern here, ठीक है जी। ਹੁਣ this is fourth component,
and if you add both of them, the third component, that is trade balance, and the fourth component, that is invisibles, what you get is 3 plus 4, that is current account balance. Okay, now that current account balance, in case for India right now it is negative, so we call it current account deficit, CAD. Okay, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ second important part है balance of payment accounting system ਦਾ, that is capital account. Okay, now in this capital account we will be dealing with things which are capital in nature, your investments, your borrowings, certain kind of things like that, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ capital accounts ਕੀ ਹੁੰਦਾ. Let's go into that. So capital account balance, you see what all it is formed of? It is formed of external assistance net. Do you remember NFIFA ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ foreign aid, है ना? So external assistance ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ. Then external commercial borrowing, so that is basically the money coming in through we taking a loan from a external source. It may be a financial institution, it may be a country, so that is external commercial borrowing. So again it is positive because we are borrowing money, so we end up getting it. Then comes the short term credit. Now short term credit means ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੋਨ. So short term credit ਦੇ ਵਿੱਚ we are the net providers of credit, we are not the borrowing entity. Okay, then banking capital net. So banking capital ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? Of which non-resident deposits, NRI ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਟ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ. ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ. ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੇਅਰ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ FD ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਉਣ. ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਿਕਸਡ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਲਿਬੋਰ, ਲੰਡਨ ਇੰਟਰ ਬੈਂਕ ਆਫਰ ਰੇਟ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਐਡਜਸਟਡ. ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੱਥੇ ਸੇਵ ਕਰਨ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ. ਦੈਨ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੈਟ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਫ ਵਿਚ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਫੋਰਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਫਲੋਜ਼. तो डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट किहड़ी हुंदी है, पोर्टफोलियो किहड़ी हुंदी है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ. ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆਏਗਾ. ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟੱਡੀ देयर ਇਨ ਡੀਟੇਲ. ਸੋ ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ 1 2 3 4 5, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟ ਵੀ ਗੈਟ ਇਜ਼ योर कैपिटल अकाउंट बैलेंस. ठीक है, और करंट और कैपिटल दोनों ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਸ में, what you get at that point is the overall balance. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਏਗਾ ਕਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਏਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਓਵਰਆਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀਅਰ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਯੂ ਨੋ, ਐਂਡ ਓਵਰਆਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀਅਰ at some point gets negative, some point gets negative, and then today again in this year it is positive. So ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ overall balance ਹੈ it goes on changing from time to time. Nothing is steady. ਇਹ ਤਾਂ granted ਹੈ ਨਾ. Now if you try and understand it, how these things are affecting us, essentially BOP ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਔਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ it should ultimately get balanced. So whenever you add, the BOP rule is that it should be balanced. Zero होना चाहिए. जे इत्थे positive आ गया, let's say you end up having a overall balance as positive. What will happen is RBI is the foreign exchange manager for the country. ठीक है? So whatever positive is gained here, it will be transferred to RBI. ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਲੈਂਸ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ RBI ਦੇ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਓਕੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ. ਓਕੇ, ਇਨ ਕੇਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਫਿਰ RBI ਨੂੰ ਇਹ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਏ.
let's say -$100 है ਤਾਂ $100 RBI ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ so that it becomes zero. That's the concern here. So RBI is the forex manager. It is the responsibility of central bank to balance the BOP account. In case it is found wanting and it's not able to balance, now what is the option? Let's say RBI has no foreign exchange reserves left with it. So then at that point of time, we are set to have a balance of payment crisis. याद है 1991 बड़ी बारी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ. This balance of payment crisis is essentially then resolved with help of IMF. Now IMF in this case is called as the lender of last resort. ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ੋਰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਉਹ ਰਿਜ਼ੋਰਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੋਲਡ ਪਿਆ ਸੀ RBI ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਜਾਪਾਨ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਹ 3 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਈ, ਉਸ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ BOP ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਕੁਡ ਮੈਨੇਜ ਫॉर ਅ ਵਾਈਲ ਵਿਦਾਊਟ ਗੋਇੰਗ in for this kind of assistance from IMF. So in case we are going to the IMF, it is a kind of a wrong signal for people who are bringing in foreign investments into the country. You know, these kind of people, FDI, FII, so they will start moving out of the country. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ. One more thing that we have to observe out of this BOP for India's case is most of the time our current account is going negative. ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ current account balance ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਘਟ ਜਾਂਦਾ. Most of the time your capital account is positive. ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ already flows ਨੇ they are all positive. ਦੇਖੋ, so India is getting in the money. If you look at the current account, just give me a moment, there you go, here it is positive and here it is negative. Doesn't this look too much like a consumption kind of a matrix of India? Import, export, and this, then that. If it is going negative, what it means is we are net consumers at the world level. We end up paying money. है ना? We are not essentially the net suppliers. We are the net consumers. If you look at the world market and place yourselves in there. Right? So this is your current account and it becomes negative. Then capital account is mostly investments and borrowings and foreign aid. That's what you have seen. Now, if your money is coming here and going here, ultimately there has to be a limit to this. ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ. ਜੇ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜੇ ਬੋਰੋਇੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਏ ਨੇ, है ना. In any case, it was somebody else's money. It is a kind of a liability. Yes or no? The money that you're receiving here is a sort of a liability. Even if a foreign aid is coming, it is a kind of political liability, if not economic liability or financial liability. Yes or no? So this liability is getting consumed in this current account. And your current account is not able to create assets for you. This is a big question mark for India. यही से शुरू होती है स्टोरी ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान कि भाई इसको बैलेंस करो जरा. ये जो तुम इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हो जिसकी वजह से हम करंट अकाउंट डेफिसिट में ही चलते चले जा रहे हैं और ये पूरे एसेट्स बनने की बजाय हमारे यहाँ पे लायबिलिटी ही खड़ी होती चली जा रही है और जो लायबिलिटी उधर से आ रही है उसको हम इधर कंज्यूम करी जा रहे हैं. जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा फॉरेन एक्सचेंज आई थी वो ठीक है आपने कन्वर्ट करके रुपी में इंडिया में तो इन्वेस्ट कर दिया. होता क्या है ना कि लेट्स से समबडी इज ब्रिंगिंग FDI इनटू इंडिया, इट विल अल्टीमेटली कम इनटू अ बैंक. दिस बैंक विल टेक अप द डॉलर एंड पुट आउट द रुपी बिकॉज मार्केट में तो पैसा रुपी चलेगा ना, करेंसी. अब वो जो डॉलर्स बैंक्स के पास इकट्ठे होते जाएंगे, अल्टीमेटली RBI हैज अ प्रेरोगेटिव की जब मर्जी उससे डॉलर खरीद ले बैंक से और रुपया उनको दे दे. ठीक बात है ना. सो इस तरह से वो सिस्टम चलते जा रहा है. अब होगा क्या कि ये जो रुपया या डॉलर्स आप इधर कंज्यूम करे जा रहे हो करंट अकाउंट में, अल्टीमेटली दिस विल क्रिएट अ नेगेटिव इमेज फॉर योर कंट्री इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. एज लॉन्ग एज RBI आपकी एक ये कह लीजिए कि इज्जत बचाए हुए है ना कि ठीक है अभी इनके पास कुछ है, तब तक ये FDIs आ रहे हैं, तब तक सारा सिस्टम ठीक ठाक चल रहा है. लेकिन जिस दिन RBI इज्जत नहीं बचा पाएगा
तो फिर वही बीओपी क्राइसिस की सिचुएशन आएगी, फिर एफडीआई एफआईआई भी नहीं मिलना, लोग सोचेंगे छोड़ो ये तो भिखारी है, पहले से इनको क्यों इन्वेस्टमेंट देनी है ना, ये इन्होंने तो खा पी ही जाने हैं, कौन सी हमारी इन्वेस्टमेंट लेके रंग लगा लेने आप आगे, तो फिर वही हाल होना है, इट विल ड्राई आउट अगेन, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीगेन द कॉन्फिडेंस ऑफ एन इन्वेस्टर वंस यू लूज इट, yes or no? So this is a very big trouble for India which has always been there. कुछ ही ऐसे साल हुए हैं जहां पे हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में गया है, तो इसको हम हमेशा बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से कभी हम स्वराज का नारा लगाते हैं, कभी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का नारा लगाते हैं, कभी हम आत्मनिर्भर भारत अभियान का नारा लगाते हैं, ताकि लोग थोड़े से सुधर जाएं करंट अकाउंट डेफिसिट को लेके। सो एसेंशियली अब देखो, इकोनॉमिक सर्वे 2019-2020 का एक इनपुट है, an increase in current account deficit as a ratio to GDP worsens the balance of payment by drawing down on forex reserves or building the potential to worsen it by increasing the external debt burden. तो जब करंट अकाउंट डेफिसिट बनता है, जब हमारे इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम है, तो दो चीजें होती हैं, ऑफिस दो बातें होंगी। पहली बात तो ये होगी कि आप कर्ज लेके अपना जो चीजें कंज्यूम कर रहे हो इंपोर्ट के अंदर, वो आप कंज्यूम करोगे, तो इससे आपकी कंट्री का एक्सटर्नल डेट पड़ेगा। दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि खुद की जो फॉरेन एक्सचेंज पड़ी हुई है आरबीआई के पास या किसी के पास, वो फॉरेन एक्सचेंज आपकी कंज्यूम हो जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और वर्ल्ड इकोनॉमी में ना आपको लोग फॉरेन एक्सचेंज के नाम से ज्यादा जानते हैं। आपके पास किसी देश की करेंसी कितनी है, स्पेशली हार्ड करेंसीज लाइक डॉलर, जिनकी ट्रेड में बहुत डिमांड है। हार्ड करेंसी क्या होते हैं? जिसमें ट्रेड में ज्यादा डिमांड है। डॉलर है, यूरो है, येन है, ऐसी करेंसीज की अगर आपके पास भरमार है, फिर तो आपको वर्ल्ड इकोनॉमी में कोई कुछ मानता है। अगर नहीं है तो अपनी करेंसी तो आप जितनी मर्जी छापते रहो, मिट्टी है दूसरों के लिए वो, क्योंकि आपकी करेंसी अगले बंदे के काम कब आनी है? जब वो आपसे कुछ खरीदेगा। उसकी करेंसी आपके कब काम आनी है? जब आप उससे कुछ खरीदोगे। तो एसेंशियली आपके पास दूसरे लोगों से कुछ खरीदने की काबिलियत होनी चाहिए जो आप उनकी करेंसी के बेसिस पे क्रिएट करते हो। उनकी करेंसी आपके पास कब आती है? जब आप उनको कुछ बेचोगे, एक्सपोर्ट्स। दैट्स द कंसिडरेशन। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग अ फेयर आइडिया नाउ। सो एसेंशियली वी हैव टू increase the amount of exports. That is why we call it export promotion. Yes, and to an extent rationalize the imports. हम ये नहीं कह रहे cut down the imports, हम कह रहे rationalize the imports. उतना का मंगाएं, वो चीज मंगाएं जिसके बिना काम नहीं चलता। बाकी का जो एस्पेक्ट है वो ज्यादातर अपने यहाँ पे ही आत्मनिर्भर धीरे धीरे हो जाएं और बेचने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा, कुछ ना कुछ बना के इनोवेटिवली, जो वर्ल्ड लेवल पे जिसकी डिमांड है, चाहे वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम बेटर तरीके से दे पाए शायद। तो इसमें अब इंडिया को आगे बढ़ना है। चलो, अब ये एक एस्पेक्ट हो गया। अब करंट अकाउंट डेफिसिट के फिलहाल हाल क्या चल रहे हैं देखो जरा। 2012-13 का अगर आप सिचुएशन देखोगे तो 4.8% के आसपास करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा था इंडिया में, और आज की अगर सिचुएशन देखते हो तो 1.5 से लेके 2% के आसपास करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है। एक बैक इन द डे कमिटी था, वाई.वी. रेड्डी कमिटी। He has also been former governor of RBI. आपको बड़े सारे नोट मिल जाएंगे जिसपे वाई.वी. रेड्डी के साइन भी हैं। इन्होंने कहा था दैट आपको ना करंट अकाउंट डेफिसिट का टारगेट रखना चाहिए 0, ताकि एक्सट्रीम सिचुएशंस में जब ये फ्लिक भी करे तो ये -2 और +2 के बीच में फ्लिक करे। अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट का टारगेट रखते हो 2, तो एक्सट्रीम सिचुएशन में ये फ्लिक जब करेगा तो ये जाएगा +4 और -2 या -4। तो ये अपने आप में एक जब फ्लिक करेगा तो इट विल क्रिएट अ ट्रबल फॉर यू। या 0 के बीच में भी जा सकता है, या और ज्यादा नीचे जाएगा तो आमतौर पे नीचे जाने के चांस तो थोड़े से कम ही है ना। तो जब ये 4% तक चला जाता है ना, उस टाइम पे जब ये जोन आ जाती है 4%, 4.3% एंड सो ऑन ऑफ जीडीपी, यहां पे ना हमारे जो आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, जिसके सिर पे हमने अल्टीमेटली करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बीच का जो बैलेंस है उसको सेट करने की कोशिश करनी है, वो फॉरेक्स रिजर्व्स काफी ज्यादा चैलेंज में आ जाते हैं। इनसफिशिएंसी लगनी शुरू हो जाती है उनकी टू डील विद ऑल दिस। तो
इस वजह से यू शुड ट्राई दैट योर करंट अकाउंट डेफिसिट रिमेन समवेयर अराउंड 0. दैट वाज द रिकमेंडेशन बाय YV Reddy कमिटी. एंड इन जनरल आवर करंट अकाउंट इज इन द लेवल ऑफ 2. Okay, so that is how you have to understand it. Okay, so 2, when I say, it means 2% of GDP. Then इसी चीज को सिग्निफाई करने वाली अब और क्या है, जैसे मैं forex reserves की बात कर रहा था, just highlighting the same thing. The backup to current account deficit is the forex reserves with increase in current account deficit divided by forex, that is current account deficit to forex ratio, reflecting the decrease in strength of the backup. तो मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट से डील करने वाली हमारे लिए कुंजी क्या है, शॉक अब्जॉर्बर क्या है हमारे पास, फोरेक्स रिजर्व. और जैसे जैसे वो कम होता चला जाएगा अपने लिए टेंशन जो है और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी. इसका इम्पैक्ट हमारी करेंसी पे भी आएगा, इसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे जो चीज़ों की कॉस्टिंग आ रही है, इन्फ्लेशन है जो, उस पर भी आएगा. हर चीज़ पे इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बीओपी के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमने कवर करने हैं यहाँ पे धीरे धीरे. सो फर्स्ट है नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड. डेफिनेशन के तौर पे इसको याद रखना है. इट इज द रेशियो ऑफ यूनिट वैल्यू इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट टू दैट ऑफ इंपोर्ट. यूनिट वैल्यू इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट टू दैट ऑफ इंपोर्ट. तो जितना मतलब यूनिट्स आपने एक्सपोर्ट किया डिवाइडेड बाय जितना यूनिट इंपोर्ट किया, तो उस हिसाब से सेट करना है. सो दैट इज नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड. देन एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट्स फ्रॉम ए ट्रेड पार्टनर्स एज ए शेयर ऑफ टोटल इंपोर्ट्स प्लस एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया डिटरमाइन द शेयर ऑफ द ट्रेड पार्टनर्स इन इंडियाज मर्चेंडाइज ट्रेड. जब इतनी लंबी लंबी डेफिनेशंस आए या कुछ भी आए तो बेटर होता है कि उसको थोड़ा सा फॉर्मूला बना के सेट कर लो. तो फॉर्मूला इसका कैसे बनेगा, एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट. वैसे तो इसको लिखने के जो टेक्निकल तरीका है दैट इज एक्स एक्सपोर्ट के लिए, और इंपोर्ट के लिए हम लिखते होते हैं एम. सो एक्स प्लस एम, ठीक है, फ्रॉम ए ट्रेड पार्टनर एज ए पार्ट ऑफ टोटल इंपोर्ट्स प्लस एक्सपोर्ट्स. सो दिस इज फ्रॉम ए ट्रेड पार्टनर एज ए पार्ट ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स प्लस इंपोर्ट्स. सो दिस इज टोटल is the share of that trade partner in the India's merchandise trade. कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है. तो लेट्स से आपका 10 यूनिट था एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ये 100 था, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10/100. कोई बहुत मुश्किल नहीं है. बस ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं तो उनको ना ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी. कई बार ना वो प्रीलिम्स में ऐसी स्टेटमेंट डाल देंगे तो हमें शायद वो फॉर्मूला फॉर्मेट में दे दें, शायद वो स्टेटमेंट फॉर्मेट में दे दें, और शायद वो सीधा से ही पूछ ले दैट the share of a trade partner in India's merchandise trade can be found on the basis of. तो 1, 2, 3 इस तरह की स्टेटमेंट डाल सकते हैं. तो उसमें से आपने कैसे सिलेक्ट करना है, ये उसके लिए है प्रीलिम्स में. ठीक है. देन अंडर द ट्रेड फैसिलिटेशन इंडिया हैज इंप्रूव्ड इट्स रैंकिंग from 143 in 2016 to 68 in 2019 under the indicator trading across borders. अभी आपके लिए एक और इंडेक्स हो गया याद रखने के लिए, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स गिवन बाय वर्ल्ड बैंक. ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो इंप्रूविंग द ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट. तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स तो पता नहीं कितनी बारी हमने रिपीट कर लिया, राइट. देन देयर इज अनदर वन, नॉमिनल एक्सचेंज रेट. सो व्हाट इज दिस? पहले तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट और इफेक्टिव एक्सचेंज रेट या एक्सचेंज रेट, ये सारी चीजें होती क्या है. तो हमने पहले भी एक्सचेंज रेट के बारे में बात की थी जब मॉनेटरी सिस्टम पढ़ा था. एक्सचेंज और रेट ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं. एक्सचेंज का कंसर्न किया कि एक चीज से दूसरी को बदलना है. अब यहां पे किसको बदलना है, करेंसी को, है ना. सो आर फोकस हियर इज करेंसी. एंड व्हेन वी से रेट, सो किसी भी चीज का जो रेट है वो किसके बेसिस पे तय होता है, डिमांड एंड सप्लाई. तो किसी करेंसी की कितनी ज्यादा सप्लाई है और कितनी ज्यादा डिमांड है, इसके बेसिस पे एक्सचेंज रेट ऑफ दैट करेंसी विल बी डिटरमिन्ड. और ये डिमांड सप्लाई चेक करने के लिए हमारे पास है क्या, देयर आर मल्टीपल स्पॉट एक्सचेंजेस एंड देयर आर मल्टीपल करेंसी एक्सचेंजेस थ्रू आउट द वर्ल्ड. जैसे हमारे यहां पे भी है एक MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज
SX, दिस इज द करेंसी विंडो ऑफ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ठीक है, तो यहां पे करेंसी से लेन देन होती है कि बंदा जाए रुपए लेके और बोले डॉलर दे दो, इस तरह से। अब जितने लोग रुपए लेके जाएंगे और डॉलर मांगने जाएंगे तो क्या हो रहा है, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। ठीक बात है। एंड वाइस वर्सा, किसी भी करेंसी की इस तरह से ट्रेडिंग होगी तो उससे एक एक्सचेंज रेट आएगा। फाइन, दिस इज वन पार्ट। नाउ हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, लेट्स गो टू दैट। अब एक्सचेंज रेट के साथ ना मैं एक शब्द और जोड़ रहा हूं, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट तक की बात क्लियर हो गई, अब इफेक्टिवनेस की बात कैसे देखेंगे। तो वेरी फंडामेंटली आई एम गोइंग टू टेल यू, ओके, जस्ट लिसन। सो एक्सचेंज रेट हमने पढ़ लिया है ना, और एक्सचेंज रेट कैसा है, एक करेंसी दूसरे के साथ बदली जा रही है, तो एसेंशियली ये क्या हुआ, बाइलैटरल एक्सचेंज रेट, इस तरह से इसको बोल सकते हैं। अब एक शब्द इसके साथ और जोड़ना है, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब ये बाइलैटरल को एसेंशियली इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जब बनता है तो होता क्या है, आप देखो, इट्स अ वेटेड एवरेज ऑफ बाइलैटरल रेट्स जितने भी चल रहे हैं with weights proportional to the share of trade of various partners is called an effective exchange rate। ये इसकी डेफिनेशन है। अब कहीं ने ये दुविधा में आना कि सर ये तो स्लाइड ही है नहीं, फटाफट से जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो लिख लो। So weighted average of bilateral rates with weights proportional to the share of trade of various partners is called effective exchange rate। ठीक है जी। अब कैसा, क्या मतलब क्या इसका, अब आरबीआई का जो ये इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का इंडेक्स हमारे पास अवेलेबल होता है ना, वो 36 डिफरेंट करेंसीज में है, क्योंकि हम करीब 36 डिफरेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ अलग अलग लेवल पे ट्रेड आज की डेट में कर रहे हैं। तो अगर लेट्स से योर इंडियन रुपी इज गेटिंग ट्रेडेड with 36 different currencies, what is happening? Let's say this is currency number 1, ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ 10% trade ਹੈ, currency number 2 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ let's say 15% trade ਹੈ, then currency number 3, like this there are 36 different currency, okay, and in each one we have a different proportion of trade. Now a weighted average of the bilateral exchange rate, bilateral exchange rate कैसे ले सकते हैं, let's say 1 unit of this currency number 1 is equal to let's say 100 rupees. This kind of a conversion rate exists, let's say it is pound sterling or whatever, ठीक है। Now this is the proportion of trade that is happening in currency number 1 and this is the exchange rate, bilateral exchange rate between the two currencies. Let me give you a real life example, है ना। So currency number 2 में हम किसको लें, let's take up Australian dollar. So Australian dollar is generally 50 rupees for 1 Australian dollar. Yes. So generally this is the thing. 45 भी चलता है, कभी 50 हो जाता है, ऐसे होता है, ठीक है। अब ये इसका 15% लेना है, ठीक है, 15% ऑफ 50 रुपीज, तो ये आपने ऐड करना और उसको वेटेड एवरेज लेना है। ऐसे ही 10% ऑफ 100 रुपीज, जितना जितना किसी करेंसी का बाइलैटरल एक्सचेंज रेट था उसका वेटेड एवरेज लेना है ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेड इन दैट पर्टिकुलर करेंसी, और इन सबको फिर ऐड कर देना और इनकी एवरेज निकालनी है, ठीक है। तो लेट्स से इसका 10% आया तो कितना हो गया, 10, है ना। ऐसे ही इसका आ जाएगा, वो सारे 36 करेंसीज ऐड करके डिवाइड बाय 36 करोगे तो वेटेड एवरेज आ जाएगी आपके पास। ये जो निकलेगा दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ये दिखाएगा क्या, ये दिखाएगा कि बाकी सारी करेंसीज के हिसाब से जितनी भी वर्ल्ड में करेंसीज हैं जिनमें जितना % अपना ट्रेड होता है, जितना अपना उस करेंसी के साथ लेन देन है, इंडियन रुपी खड़ा कहाँ है, क्योंकि आप अकेले यूएस डॉलर के हिसाब से इंडियन रुपी को जज नहीं कर सकते, उसकी वर्ल्ड पोजीशन नहीं नजर आती। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के बेसिस पे अपने को किसी करेंसी की वर्ल्ड लेवल पे क्या पोजीशन है वो नजर आती है, दैट इज द कंसर्न हियर, ठीक है। अब इसको अगर कांस्टेंट प्राइसेस के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए, याद है बेस ईयर इन्फ्लेशन में पड़ा था, तब इसको क्या बोलेंगे, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। करेंसी के कोई एक बेस ईयर मान लिया कि भाई ये 2011-12 में जो बायलैटरल एक्सचेंज रेट था ये था, और उसके हिसाब से अगर हम लेंगे तो देन इट विल बी कॉल्ड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अगर हम उसको आज की मार्केट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तब वो क्या आएगा,
नॉमिनल, क्योंकि वो करंट पे ऊपर हो जाएगा, देन इट इज कॉल्ड नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो ध्यान से समझ लो, एक बार फिर बता रहा हूं, ठीक है। एक्सचेंज रेट का मतलब बायलैटरल, एक करेंसी का दूसरी में कितने का आया। इफेक्टिवनेस जब चेक करनी हो तो ये देखना होता है कि एक करेंसी का बायलैटरल और परसेंटेज ऑफ ट्रेड कितना है, उस हिसाब से एक वेटेड एवरेज निकालनी है। वो वेटेड एवरेज जो आएगी दैट इज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब इस इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को अगर किसी बेस ईयर के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे, कांस्टेंट प्राइसेस पे कैलकुलेट करोगे, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आ गया। अगर इसको करंट प्राइसेस पे करोगे तो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आ गया। बस इतनी सी बात है, क्लियर हो गया। कई बार इसको लेके ना और एक धांसू क्वेश्चन डालने की कोशिश करते हैं, टेस्ट सीरीज में देखा मैंने, यूपीएससी वाले तो नहीं पंगे लेते आमतौर पे, कि इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज मल्टीलैटरल वाइल बायलैटरल एक्सचेंज रेट हो तो, या अकेला एक्सचेंज रेट लिख देंगे तो दैट इज बायलैटरल। तो हाँ ठीक है, यही मतलब होता है। ये मल्टीलैटरल ही तो निकला ना, सारी करेंसीज के हिसाब से है, तो दैट इज व्हाई इट इज मल्टीलैटरल, ठीक है। और एक्सचेंज रेट इन जनरल जब हम बात करते हैं दैट इज बायलैटरल, क्योंकि दो करेंसीज के बीच में बात हो रही है। क्लियर हो गया जी बिल्कुल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। किसी को कोई डाउट है तो लिख दो जरा चैट में। चलो शुक्र है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाले भी कई दे डाउट्स रह गए होंगे, सो प्लीज जस्ट गो बैक अ लिटिल बिट, दो बार ये तो देख लो, समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव टू चेक आउट टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया इन 2019-2020 जिन्हां अपना सब तो ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है। जिवें मैं कह रहा सी ना, हर करेंसी दे विच अलग-अलग है, तो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट भी उसी तरीके नाल तय करांगे। नाउ यूएसए इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद इंडिया इन टर्म्स ऑफ बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। हियर इट इज total trade is being considered, so 11.3% that is the trade of India with USA. So when US dollar is something like 70 rupees, you know, for $1, so it matters 11.3% to us. Understand this, ठीक है, in terms of effective exchange rate. So 11.3% of 70 will be taken. Clear है? अच्छा, then Chinese PRP, so that is People Republic of China, okay, so I should write it actually PRC or China PRC. So 10.9% of India's trade is with China. So whatever is the value of Chinese renminbi, this is their currency, okay, renminbi, इसका डिनोमिनेशन यूनिट है युआन। जैसे अपने जाए ना रुपया पैसा, ऐसे यूएस में डॉलर्स एंड सेंट्स, तो ऐसे ही रेनमिनबी एंड युआन, ठीक है, ओके। देन थर्ड वन इज यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सो उनके साथ हमारा 7.3% ट्रेड है। तो यूएई की करेंसी रुपए में कितनी आती है, वो 7.3% ही हमारे लिए मायने रखता है। क्लियर होगी बात। देन क्योंकि जब हम अखबार में पढ़े ना, वो डॉलर इतना चला गया, दिमाग में पता नहीं क्या ही आता है, तो ये नहीं टेंशन लेनी, ठीक है। देन सऊदी अरेबिया, fourth largest trading partner at 4.1%, and then Hong Kong is there, and then so many others are there. So ਤੁਸੀਂ ਜੋ याद रखने हैं PCS ਦੇ पेपर ਲਈ, ਉਹ top 4 याद रख लेने हैं बस, that's all, you know. So USA, China, UAE and Saudi Arabia, just remember this much, okay. Then going forward, bilateral trade in terms of surplus and deficit. So India has a trade surplus, means हम किसी कंट्री को एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और उनसे इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो व्हेन इट इज ट्रेड सरप्लस, सो विद यूएसए वी हैव अ ट्रेड सरप्लस, दैट इज द कंसिडरेशन हियर, okay. So if you look at it continuously for so many years, we are having a trade surplus with USA, and it is the number 1 position at the surplus level also. With UAE also we have a trade surplus, but that comes at number 2, means थोड़ा कम हम उनसे कमा रहे हैं। तो अगर 2019-20 का फिगर देखोगे तो बड़ा कम है। इसके बाद भी और भी कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, लेकिन वो यहाँ चार्ट में डालने के लायक नहीं है, बहुत कम चला जाएगा, क्योंकि अभी आप यूएई का ही देखो तो 0.25 बिलियन यूएस डॉलर्स है, ठीक है ना, फिर वो तो इससे भी कम चला जाएगा। अमेरिका के साथ अपना 10.91 बिलियन यूएस डॉलर है, तो वो साइजेबल फिगर है, लिखने में अच्छा लगता है। अब इकोनॉमिक सर्वे से ये मैंने एक्सट्रैक्ट किया है 2019-20, तो इकोनॉमिक सर्वे में अब 0.01 बिलियन यूएस डॉलर लिखते थोड़ी ना अच्छे लगेंगे, उससे अच्छा तो नहीं लिखो, टॉप 2 दिखा दो बस। तो वही काम किया है सरकार ने, ठीक है। अब है ट्रेड डेफिसिट, अब लिखते हुए तो ये भी नहीं अच्छे लगते बट लिखना पड़ रहा है, सच है, क्योंकि तो ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है कि हमने इंपोर्ट ज्यादा किया है इनसे
और एक्सपोर्ट इनको कुछ खास नहीं किया हुआ। तो चाइना जो है दैट इज नंबर 1 जिसके साथ अपना ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। नजर मारें जरा कैसे है। तो 2018-19 का पूरा साल जब देखते हैं, क्योंकि 2019-20 का ना सिर्फ थोड़ा ही पीरियड है जो कंसिडर्ड है, दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर, जिसका डेटा होता है व्हाइल द इकोनॉमिक सर्वे वाज बीइंग प्रिपेयर्ड। तो तब तक इसी एरिया का अपने पास इसी टाइम लिमिट का डेटा है। 2018-19 का डेटा जो है वो ज्यादा रिफ्लेक्टिव रहेगा इस मामले में, क्योंकि वो पूरे साल का डेटा है। ठीक है, सो $53.57 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। पिछले 2017-18 के फिस्कल के कंपैरिजन में कम आया, जो कि करीब करीब $10 बिलियन कम कर दिया हमने, 63 से 53। अभी इतने पीरियड का 35 है, लेकिन ये बाय द टाइम दिस पर्टिकुलर ईयर आल्सो फिनिशेस, लेट्स सी वेयर दैट फिगर कम्स, और इकोनॉमिक सर्वे से पता चलेगा। धीरे धीरे आप जब टिकटॉक इंस्टॉल करेंगे तो ये शायद फिगर थोड़ी सी और कम हो जाए। अभी जैसे 59 एप्स अनइंस्टॉल कराई हैं आपसे, तो इसका जो इकोनॉमिक आउटकम है दैट इज $6 बिलियन जो उनकी कंपनीज को हिट लगा है। अब ये $6 बिलियन का तो यहाँ पे कम से कम थोड़ा सा गैप जो है ना कम होगा ही होगा अगले साल की जब हम बात करेंगे। ठीक है ना, तो इस वजह से वो जो कहते हैं ना कि ये भी ऐप्स अनइंस्टॉल करने से क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे फर्क नजर आएगा। ठीक है, 63 से 53, अब 53 - 6 तो कर ही लो ना, आगे जो आप कंट्रोल कर लो उस हिसाब से। सो ये है ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। देन सेकंड लार्जेस्ट इज विद सऊदी अरेबिया बिकॉज ऑफ ऑयल। थर्ड लार्जेस्ट इज अगेन विद सऊदी अरेबिया अगेन बिकॉज ऑफ ऑयल। देन कम्स योर जर्मनी, कोरिया, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड एंड सो मेनी अदर कंट्रीज। बट अगेन टॉप 4 याद रखने हैं बस, चाइना, सऊदी अरेबिया, इराक एंड जर्मनी। ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन नंबर 1 और नंबर 2 पे आमतौर पे यही 2 कंट्रीज हैं। ठीक है, चाइना एंड सऊदी अरेबिया, बिकॉज हमारा ऑयल इंपोर्ट ज्यादातर सऊदी अरेबिया से हो रहा है। ओके, अब अगर एक्सपोर्ट्स की कॉम्पोजिशन देखें हम कि किस तरह से चल रही है, ये कंपैरेटिव फिगर है 2011-12 से 2019-20 के हिसाब से। तो वो तो चेंजेस के हिसाब से अगर आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी हो तब चाहिए, लेकिन अभी के लिए वी कैन फोकस ओनली ऑन दिस पार्ट। ठीक है, सो सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट इंडिया से होता है वो क्या है जी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट जो इंडिया में होता है दैट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। बड़े लोग हैरान से हो रहे होंगे, भाई इंडिया तो ऑयल इंपोर्टर था। भाई तो मैं कौन सा कह रहा हूं, क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मीन्स योर लुब्रिकेंट्स, मे बी अ ग्रीस, मे बी एन इंजन ऑयल, maybe something like that. So that is a petroleum product. Okay, and it's not all. There are many petroleum products. Petroleum jelly is also a petroleum product. So like this, there are n number of petroleum products which are exported. Then second largest export from India is pearl, precious and semi-precious stones. ठीक है जी, तो यहाँ पे ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काम करती है। Then drug formulations and biologicals, द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आप अभी आजकल के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये ड्रग फॉर्मुलेशंस करने के लिए 68% जो रिसोर्स केमिकल है वो चाइना से आता है। ठीक है, देन गोल्ड एंड अदर प्रेशियस मेटल ज्वेलरी, सो दैट इज द फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट। सो इंडिया टॉप 4 एक्सपोर्टेड आइटम्स क्या हैं, आपको अगेन यहाँ पे याद रखनी है, सिर्फ टॉप 4, बाकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इनके परसेंटेज भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सा कितने परसेंट है। ठीक है, ओके। देन कमोडिटी वाइज इंपोर्ट्स, तो टॉप 4 इंपोर्ट्स क्या है इंडिया के, अब ये याद रखना है इसमें से। सो अगेन पेट्रोलियम, लेकिन साथ में लिखा है क्रूड, तो मतलब क्रूड ऑयल। ठीक है जी। देन सेकंड इज गोल्ड, थर्ड इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड फोर्थ इज कोल, कोक एंड ब्रिकेट्स। तो ये टॉप 4 यहाँ पे आपने याद रखने। परसेंटेज फिर नहीं जरूरत याद रखने की कितने परसेंट कौन सा हुआ था, बी रिलैक्स्ड। ओके, नेक्स्ट, import origins of India in 2011-12 and 2019-20। अब आपने ना ऑरेंज वाले देखने हैं 2019-20, ये कंपैरेटिव स्टडी के लिए हम यूज करते हैं इकोनॉमिक सर्वे के लेवल पे, बट यू फोकस ओनली ऑन दी ऑरेंज पार्ट, दैट इज 2019-20। सो सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम किस कंट्री से कर रहे थे, चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। दूसरे नंबर पे यूएसए, तीसरे नंबर पे यूएई और चौथे नंबर पे सऊदी अरेबिया। सो ये टॉप 4 यहाँ पे फिर से याद रखने हैं। परसेंटेज या उनका प्रोपोर्शन याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बस दैट्स हाउ यू हैव टू डील विद इट। ओके, बॉटम 4 के चक्कर में नहीं पड़ना कभी भी, लाइफ में भी और यहाँ पे भी। ठीक है। देन टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स।
अब ये तो हो गया हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और फिर आगे अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने कहा था एफडीआई एफआईआई क्या होता है, इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। तो ये वो बात होने वाली है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में 2-3 तरह के टाइप्स हैं जिन पे हमने फोकस करना है। एक है एफडीआई, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फिर है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फिर है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर क्यूएफआई। तो इनके अलग अलग कैटेगरीज जो हैं वो हमने पढ़ने हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या है? तो जब कोई एंटिटी अपना खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए इंडिया में आए और खुद इन्वेस्टमेंट करके एक प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, एक्सचेंज चेन का हिस्सा बने, तब हम उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर मानते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं, देखिए, एस्टैब्लिशिंग न्यू बिजनेस ऑपरेशंस, वेदर इट इज ग्रीनफील्ड, दैट मीन्स अपना नया ही काम कर रही है, और अक्वायरिंग बिजनेस एसेट्स इंक्लूडिंग कंट्रोलिंग इंटरेस्ट्स इन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी, जिसको क्या बोलते हैं? ब्राउनफील्ड एफडीआई। तो ग्रीनफील्ड मतलब नया काम शुरू कर रही है, ब्राउनफील्ड चलते काम में हिस्सेदारी डाल रही है, तो इस तरह से उसको एफडीआई बोलते हैं। अब ये एफडीआई इनवर्ड भी हो सकती है, आउटवर्ड भी। कहने का मतलब, जब हमारे देश में निवेश आए बाहर से तो हम बोलेंगे इनवर्ड एफडीआई, जब हमारी यहाँ से लोग बाहर कहीं और निवेश करें तो बोलेंगे आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे टाटा ने जेएलआर को खरीदा, दैट वाज आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वॉलमार्ट जब इंडिया आया तो दैट इज इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देन एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, इफ ए फॉरेन इन्वेस्टर owes more than 10% share in a listed company, listed मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, it will be treated as FDI। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग में फिर उसका एक मेजर शेयर है, इस वजह से उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी मानते हैं, और उसका वाकई में फिर उस कंपनी के साथ कुछ ना कुछ सही मायने में लेन देन भी है। ठीक। देन नेक्स्ट कम्स योर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब इंडिया में ना ऐसा हम क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि only institutional investors are allowed to invest in India, and that too after they get registered and licensed by SEBI। जो इंडिविजुअल फॉरेनर्स हैं वो सीधे तौर पे हर कोई इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। उसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन है, अगर कोई फॉरेन इंडिविजुअल अपने लेवल पे करना चाहता है तो उसको अपने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब जो एफआईआई पहले से सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, उसमें एक सब अकाउंट खोलना पड़ेगा। और वो सब अकाउंट खोलने की जो इजाजत है वो भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, मतलब अमीरजादों को ही है, जिनके पास फालतू के पैसे लुटाने के लिए। ठीक है, तो they should have a minimum net worth of $50 million, only then they can registered as sub account of FII, and then they can invest in India, okay, but their investments will be channelized through that FII only, which is already registered with SEBI. Okay. Now, foreign institutional investments are also known as hot money because ये कभी भी पैसा जो है हमारी मार्केट से बाहर जा सकता है, इसलिए इसको hot money बोलते हैं, है ना। तो एफडीआई को कोल्ड मनी बोलते हैं? नहीं, उसको स्टेबल मनी बोल देते हैं। सो एफडीआई और एफआईआई का अगर आप बेसिक सा कंसिडरेशन आप लेते हो, सो एफडीआई इज डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ एंट्री और एग्जिट, एंड एफआईआई ऑन द अदर हैंड इज ईजी। Generally in FDI you get a long term capital, but in FII it can be both long and short term capital. Then in case of FDI there is a transfer of funds, resources, technology, strategy, know-how, innovation, everything. But in case of FII it's funds only, nothing else. Okay, so this is the core difference. हमने इसके बारे में पहले भी बात की है। खैर, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर अब एक नई एंटिटी है जो इंडिया में 2002 के अंदर इनोवेट की गई, जो हमने सेबी ने एज इट इज अलाउ किया। अब यहाँ पे क्या था, पहले अगर फॉरेन इंडिविजुअल को इंडिया में आना है तो एफआईआई का एक सब अकाउंट बना के फिर वो आ सकता था। तो 2002 के बाद एक क्यूएफआई की स्ट्रैटेजी बनाई गई। उसमें क्या था, दैट they should be residents in a foreign country and they should be at par with the FATF standards, that is Financial Action Task Force standards, and they will be able to invest in India without having to register as a sub account of FII. So that is the consideration. Okay. So साथ में ये भी है कि it should be a signatory to International Organization of Securities Commission Multilateral Memorandum of Understanding. तो इस तरह से एक सिस्टम और बना देगा कि QFI भी आ सकता है। अब क्या है कि QFI प्लस FII, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन दोनों के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती है उसको हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो बी वेरी क्लियर विद दिस।
आमतौर पे लोग ना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के साथ क्लब करके बराबर मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो ये ना प्रीलिम्स में बड़ा सीधा क्वेश्चन आता है इसको लेके भी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स? वेरी सिंपल। सो देयर इज फॉरेन करेंसी, देन इट इज गोल्ड, देन इट इज SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट। क्या होता है कल के लेक्चर में आएगा, IMF के साथ हम पढ़ेंगे बहुत ध्यान से। देन रिजर्व ट्रांचे पोजीशन इन IMF। अभी के लिए ये दो आपने SDR और RTP जो है ये सिर्फ याद रखने हैं। कल जो लेक्चर आएगा एक्सटर्नल सेक्टर का उसमें हम IMF पढ़ेंगे, उसके अंदर ये सारी चीजें बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। सो अभी के लिए जस्ट रिमेंबर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर जब फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ अ कंट्री, उसमें 4 पार्ट्स होते हैं, फॉरेन करेंसी, गोल्ड, SDR एंड RTP, ये 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। 2 तो अपने आप में सिंपल है, SDR और RTP कल के लेक्चर में कवर होगा। नाउ ये जो फॉरेन करेंसी है इसका मैनेजर इंडिया में कौन है? RBI, जैसे हमने पहले पढ़ा। देन अभी की स्थिति क्या है फॉरेन एक्सचेंज को लेके? तो लाइक आई सेड 4 पार्ट्स होते हैं, तो 4 पार्ट्स का जो अभी तक का डेटा अवेलेबल है एज ऑफ 3 जुलाई 2020 फॉर अस इज दिस वन। दिस इज द total foreign exchange reserve of India in US million dollars as well as in rupees। तो चारों पार्ट्स जो है उन्होंने सेट करके बताए हैं। ये RBI की वेबसाइट पे ही ये डेटा टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, तो वहीं से हमें पता लगता है कि कितने रिजर्व्स हैं हमारे पास। तो $513 billion, yeah, so that is the amount as on 3rd of July 2020। This I directly have taken out from the RBI website। Okay, now next thing that we have to understand is external debt। ये सारी टर्मिनोलॉजी जो फ्लो कर रही है ना, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग सिस्टम से ही फ्लो कर रही है अभी तक। जो भी हमने वहाँ पे चीज़ें देखी हैं, छोटी छोटी FDI, FII, देन बोरोइंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये वहीं से सारी टर्मिनोलॉजी आगे आगे फ्लो करी जा रही है। अब देखो आगे, एज पर RBI's लेटेस्ट डेटा, आर एक्सटर्नल डेट इज $557.4 billion। ऊपर नजर मारना जरा, $513 billion अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ी है, और जो डेट है वो कितना है? $557 billion। तो होगी ना परेशानी तो, बट बात सिर्फ इतनी सी है जिसपे हम बचे हुए हैं कि ये सारा ना एक साल में नहीं देना। आज की घड़ी जो पड़ा है वो पड़ा है जेब में, एक साल में ये सारी पे ऑफ नहीं करनी। ये पे ऑफ कैसे करनी है? इसका एक बहुत ह्यूज पार्ट लॉन्ग टर्म डेट है, 30 साल में 40 साल में वापस करना है, तो धीरे धीरे EMIs में जाएगा, इसलिए थोड़ी सी शांति है, ठीक है। अच्छा, डेट सर्विस रेशो, अब हर साल इसमें से कितना जाएगा? डेट सर्विस रेशो है 7%। ये इसका मतलब क्या होता है बेसिकली डेट सर्विस रेशो का, कि मेरे पास जो पैसे आ रहे हैं उसमें से कितने पैसे हैं जो मैं डेट पेमेंट के लिए दे रहा हूं। सो आउट ऑफ माई इनकमिंग मनी, हाउ मच इज बीइंग एलोकेटेड टू द पेमेंट और टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ डेट, whether it is in terms of principal, whether it is in terms of interest and so on. That's what is written also. So India pays 7% of its export earnings, ये foreign currency तो वहीं से आ रही है, to pay the external debt inclusive of principal and interest. So that is the debt service ratio. Concept भी है और figure भी है. Then commercial borrowings. So इसको हम external commercial borrowings भी बोल रहे थे, मतलब बाहर से जो लोन लिए जा रहे हैं। Continue to be the largest component of the external debt. सबसे बड़ा पार्ट हमारे total borrowings में से external commercial borrowing है, with a share of 39.1% followed by NRI deposits। ये भी हमारे लिए liability है ना? बैंकों के लिए liability होती है तो कंट्री के लिए भी liability है यहाँ पे। And short term trade credit। सो टॉप 3 इन टर्म्स ऑफ बोरोइंग कौन कौन से हुए? ECB, NRI डिपॉजिट एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, ठीक। देन US डॉलर डिनोमिनेटेड डेट कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट कंपोनेंट एट ऑलमोस्ट 50%। तो सबसे ज्यादा हमारा जो कर्ज है, एक्सटर्नल डेट जो है, वो US डॉलर में है। ये हमारे लिए चिंता का विषय होता है जब हम देखते हैं कि US डॉलर की जो करेंसी वैल्यू है एज कंपेयर टू रुपीज बहुत बढ़ रही है, यहां पे ये ट्रबल हमारे लिए क्रिएट हो जाता है। देन फॉलोड बाय इंडियन रुपी। तो दूसरा सबसे बड़ा डेट का कंपोनेंट कौन सा है? इंडियन रुपी, 37.2% वो है, मतलब ये वो डेट है एक्सटर्नल डेट जो रुपी में ही देना है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये रुपी वाला डेट कहां से आ गया, तो वर्ल्ड बैंक आगे जाके कल पढ़ेंगे, उसका एक पार्ट है
इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईडीए। आईडीए जो लोन देता है इसको बोलते हैं सॉफ्ट लोन विंडो। तो यहाँ पे ना 0% इंटरेस्ट से लोन मिलते थे, ठीक, खास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज को जिनकी पर कैपिटा इनकम एक थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है। तो इंडिया काफी देर तक वो थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे था, तो वो ये लोन्स हमने लिए हैं और इनकी अवधि होती है 40 साल तक की, 40 ईयर्स में इसको पे बैक करना होता है। और जो इंस्टॉलमेंट ईएमआई भी शुरू होती है ना वो 10 साल बाद होती है, और 10 साल फर्दर इसमें एक्सटेंशन इसलिए मिल सकती है हमें। और ये जो रीपेमेंट करना है ये भी जो होम करेंसी है उसमें करना है, लो चाहे आप डॉलर, कोई टेंशन नहीं। सो आईडीए लोन्स आर लाइक दिस, दैट्स व्हाई दे वर कॉल्ड एज सॉफ्ट लोन विंडो। तो ये जो बहुत सारे लोन ले रखे हैं अब ये उनका जा रहा है अभी भी पैसा वापस, दैट इज द सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट इज एसडीआर, देन येन एंड देन यूरो। एसडीआर वही आईएमएफ वाला जो आईएमएफ से बोरो किया हुआ इंडिया ने। सो इस तरह से हमने अलग अलग लेवल पे जो बोरोइंग की है, सबसे ज्यादा जो टॉप 4 कंपोनेंट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, यूएस डॉलर, इंडियन रुपी, एसडीआर एंड येन। अगर करेंसी के नाम पे बोले तो इस तरह से। कई बार वो क्या करते हैं, एसडीआर को एज अ करेंसी मैट्रिक्स नहीं शो करते, तो फिर आपका क्या आ जाएगा, यूएस डॉलर, इंडियन रुपी, येन एंड यूरो, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है जी। देन शेयर ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इज ऑलमोस्ट 79.6% और 80%। तो मतलब ज्यादा, एक साल से लंबे डेट जो है वो ज्यादा हैं, और शॉर्ट टर्म डेट अपना मतलब कितना हो गया, 21% के आसपास हो गया, है ना। सो देन concessional debt of the total debt was 9% and government debt of the total debt is 21.2%। मतलब बाकी का जो डेट है वो प्राइवेट का है ना। तो 21% हमारा करीब करीब सरकारी डेट है, बोरोइंग है, और बाकी की ज्यादातर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ज्यादा था ना, कमर्शियल मतलब प्राइवेट एंटिटी ऑन एन अदर हैंड, तो वो ज्यादा है, ठीक है जी। नाउ कम्स इंडियाज फॉरेन ट्रेड। अब यहाँ पे ना 2 एंगल से देखना है। यहाँ तक जो हम पढ़ रहे थे इससे पहले, दैट वाज बीओपी एंड द रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, हमने वोकैबुलरी इनरिच करनी थी। तो आई होप कि आपको वोकैबुलरी जो है वो समझ आ रही होगी। फटाफट से चैट में यस लिख के या नो लिख के बताओ। नहीं आ रही अगर यहाँ तक तो वापस से शुरू हो जाओ ये वीडियो देखनी क्योंकि टर्मिनोलॉजी जब तक नहीं समझ आएगी आगे बढ़ना बेकार है। प्रीलिम्स में 70% क्वेश्चन जो अब तक हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी है ना वहां से आते हैं, 30% के अंदर ये वाला एरिया आएगा, ठीक है। इसमें रादर मीन्स का एंगल ज्यादा है। तो चलो आगे देखते हैं। अब इंडियाज फॉरेन ट्रेड जो है, सो वी हैव टू स्टडी दैट फॉरेन ट्रेड अंडर वेरियस सेगमेंट्स। वन इज वैल्यू, कॉम्पोजिशन एंड डायरेक्शन, कितना, कौन कौन सी चीजें और किसके साथ, वैल्यू, कॉम्पोजिशन एंड डायरेक्शन। प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे तो हम ज्यादा ट्रेड के बारे में सोचते ही नहीं थे, रादर हमारे लिए तो ट्रेड उस टाइम पे नुकसानदायक था, हानिकारक था। क्यों? क्योंकि हम इंपीरियलिस्टिक कंट्रोल के अंदर थे और हमारे यहाँ से ड्रेन ऑफ वेल्थ चल रहा था, जैसे कि दादा भाई नारोजी ने बताया हमें, है ना। पोस्ट इंडिपेंडेंस में थोड़ा थोड़ा रिलक्टेंटली हमें ट्रेड करना पड़ा क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स थी इंपोर्ट को लेके। सो एम्फेसिस ऑन इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसीज हमारा फिर भी ज्यादा रहा कि भाई जो अंदर आ रहा है ना इंपोर्ट, उसको ज्यादा ध्यान से देखो। एक्सपोर्ट करने की तो खास पॉसिबिलिटी हमारे पास थी नहीं, क्योंकि एज इट इज इंडिया में एग्रीकल्चर के लेवल पे भी आपने प्लानिंग पढ़ा है, तो हमारा फोकस था कि भाई पहले फूड सिक्योरिटी कर लें। हम निर्भर थे बाकी कंट्रीज के ऊपर कि फूड भी बाहर से ही आएगा, तो इंडस्ट्री तो अभी आनी कहाँ से थी। तो इस वजह से शुरुआती दौर के अंदर, खास तौर पे 40s एंड 50s, तो हम सिर्फ एम्फेसिस किसके ऊपर था फॉरेन ट्रेड को लेके, इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसीज, जो इंपोर्ट आ रहा है वो कम से कम आए। फिर थोड़ा सा 60s एंड 70s में जाके जब चीज़ें यहाँ पे बननी शुरू हुई, आपको याद होगा कि थोड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने बात की थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, और ये सब चीज़ें शुरू हो गई। सेकेंड 5 ईयर प्लान में भी हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे थोड़ा जोर दिया, तब जाके एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात यहाँ पे इंडिया में होनी शुरू होती है। देन 70s और 90s में थोड़ा सा फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आया, तो उस टाइम पे थोड़ी सी ट्रेड पॉलिसी फिर से बदली हमारी, और 90s ऑनवर्ड्स फिर से ट्रेड पॉलिसी में एक चेंज आता है, दैट इज एलपीजी और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो फेज 2 जो शुरू होता है वो यहाँ से होता है, दैट्स अ बिट लिबरल फेज ऑफ योर पॉलिसी। सो वो यहाँ से 1978 के आसपास आपको नजर आ जाएगा कि एक ट्रांजिशन आती है इंडिया के ओवरऑल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। हालांकि इंडिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में ट्रांजिशन आती है 1990 के बाद, लेकिन ट्रेड पॉलिसी की ट्रांजिशन जो है वो 78 में ही एज इट इज हमें मिल जाती है। ओके, सो अब जब भी ट्रेड पॉलिसी की बात होती है तो वन इज इनवर्ड ओरिएंटेड, मतलब इंपोर्ट्स को लेके क्या पॉलिसी है। सो विद रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट्स
एंड जब भी आउटवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी की बात होगी दैट मीन्स एक्सपोर्ट्स को लेके क्या पॉलिसी है, ठीक। अब देखिए इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी को मैं डिवाइड कर रहा हूं दो एरियाज के अंदर, एक है प्री रिफॉर्म, एक है पोस्ट रिफॉर्म। और यहां पे जो मेरे पास बेंचमार्क ईयर है दैट इज 1977-78। सो जनता पार्टी रूल याद है। प्री रिफॉर्म इज डोमिनेटेड बाय इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। दो चीजें हो रही है इसमें। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन का मतलब बाहर से जो चीजें हैं कम आए, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये मंगाने की बजाय ये मंगा लो, इट्स लाइक दिस, ठीक है। सो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जो है अपने आप में वो दो तरह की होती हैं, एक क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। दो तरह की हमारे पास इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस कौन सी होती हैं? जैसे कि हाई इंपोर्ट ड्यूटी, कुछ भी बाहर से आएगा उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे। लाइसेंस लोगे तभी इंपोर्ट कर पाओगे। कैनलाइजिंग, इसका मतलब होता है कि पब्लिक सेक्टर एंटिटी कोई है जो मंगाएगी और आप में बांटेगी, एक कैनाल के थ्रू आ रहा है ना। तो कैनाल यहाँ पे कौन सी है? पब्लिक सेक्टर एंटिटी, जो आप उनको बोलोगे पहले कि भाई हमें ये चीज मंगा दो, फिर वो मंगा के आप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज कैनलाइजिंग, ठीक है। देन कॉन्टेक्स्ट इस टाइम पे क्या था? मेलानोबिस मॉडल। सेकेंड 5 ईयर प्लान के चलते हमने ये सोचा था कि भाई डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है उसको प्रोटेक्ट करना है, और प्रोटेक्ट करने के लिए सारी की सारी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, क्योंकि मल्टीनेशनल बिग काइंड ऑफ कंपनीज विल अदरवाइज ईट योर मार्केट एंड योर कंपनीज एंड विल बाय देम ऑफ, फिर आप घूमते रहना, है ना। तो इसका लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? सिवियर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस वर देयर इन इंडिया फ्रॉम 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी टिल 1977-78। राइट नाउ देयर वर 4 कैटेगरीज ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, जो मैंने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस आपको पहले बात की। पहली कैटेगरी क्या है? नॉन परमिसिबल और बैंड, मतलब बिल्कुल ही इंडिया में आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा कोई एक एडवांटेज नहीं है, क्योंकि हम इंपोर्ट किस चीज को करेंगे? एटलीस्ट हमारा कुछ एक कंपैरेटिव एडवांटेज को फ्लॉ तो करना चाहिए ना। अगर एक पर्टिकुलर चीज बनाने में आपका एडवांटेज है तो वो आप बनाओ, अगर वो नहीं एडवांटेज आ रहा, कंपैरेटिव एडवांटेज बिल्कुल ही नहीं है वो चीज बनाने में, रैदर आपके यहाँ पे इनएफिशिएंट प्रोडक्शन है, रिसोर्सेज की जो स्कैर्स रिसोर्सेज है उसकी वेस्टफुल एलोकेशन हो रही है उस चीज को बनाने में, फिर आप इंपोर्ट करोगे। तो अगर वो चीज यहां बनाई जा सकती है तो देन इट इज नॉन परमिसिबल और बैंड, इट विल नॉट बी इंपोर्टेड। सेकंड इज लिमिटेड परमिसिबल, दैट मींस दे कैन बी इंपोर्टेड आफ्टर मैंडेटरी सर्टिफिकेशन एंड क्लियरेंस। दो पार्ट हैं बाय सीसीआई। सीसीआई क्या है? चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो एक बॉडी बना दिया, वो एक पहले सर्टिफिकेट देगा हाथ में आपके, फिर जब आप इंपोर्ट भी करा लोगे फिर क्लियर करेगा कि हाँ जो कहा था वही मंगाया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मंगा लिया, लाइक दैट। ऑटोमेटिक परमिसिबल में क्या है कि सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है लेकिन क्लियरेंस चाहिए, फिर से वही बॉडी है सीसीआई। देन देयर इज फोर्थ कैटेगरी ओपन जनरल लाइसेंस। यहां पे ना सर्टिफिकेट चाहिए ना क्लियरेंस चाहिए, तो कुछ आइटम्स यहां पे डाल दी जो कि कोई भी जब चाहे मंगा सकता है, कोई टेंशन नहीं है, कोई रोक रखाव नहीं है। इस तरह से 4 कैटेगरीज ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाया, ठीक। नेक्स्ट पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। अब कोई सोच रहा होगा क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या थी, तो इंडिया में हम आमतौर पे लगाते नहीं, बट अदरवाइज ये टेक्निकल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे BS6 स्टेज है ना, या यूरो 6 स्टेज। अब ये यूरो 6 गाड़ियां ही आप यूरोप में जाके एज इट इज एक्सपोर्ट कर पाओगे, आप यूरो 4 गाड़ियां नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक टेक्निकल स्टैंडर्ड बना दिया कि यूरो 6 एमिशन नॉर्म्स को अगर फॉलो करेंगे तो बात बनेगी। ऐसे कोई भी अगर वो स्टैंडर्ड्स लगाएं, जैसे सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, तो वो जो है आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फॉलो करनी पड़ेगी, तभी वो चीज एक्सपोर्ट के लिए एक्सेप्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी। इट्स लाइक दिस, ठीक। तो खैर पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, सो 1977-78 इंपोर्ट पॉलिसी आया। इसने क्या किया? Economic necessities led to import liberalization. However, major thrust came only after 1991. अब यहाँ पे ना आपको याद होगा कि 12% के आसपास इन्फ्लेशन चल रही है इंडिया में, है ना। और ऐसे में हमें एज इट इज इंपोर्ट्स बढ़ाने पड़े, क्योंकि अब आप देखिए इन्फ्लेशन अगर मार्केट में ज्यादा है आपकी इकोनॉमी के अंदर, लेट्स से दिस इज योर पर्टिकुलर इकोनॉमी, सो प्राइसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड ओवर सप्लाई। If within the economy this supply is insufficient, then you create cheaper imports from the outside and this will augment the supply. बाहर से सस्ता सामान मंगाओ ताकि यहाँ पे सप्लाई सफिशिएंट हो जाए, इससे फिर प्राइसेस जो हैं वो ड्रॉप कर सकते हैं। तो आउट ऑफ नेसेसिटी वी हैव टू डू दिस।
Many a times with most of the products, this is the concern. Why we import? Because they are cheap imports. Sometimes they are so cheap they start hurting your industry. कि वही खरीद रहा है बंदा और आपका खरीद ही नहीं रहा, और यही चाइनीज गुड्स के साथ भी है ना। तो खैर, मोस्ट कैपिटल गुड्स आर प्लेस्ड अंडर OGL, ओपन जनरल लाइसेंस में डाल दी ज्यादातर कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन सी थी? प्रोडक्टिव एसेट्स, है ना। Then liberal imports of technology were allowed, and in 1988 a new policy of export and trading houses was also created. इसमें क्या किया कि आप अगर sufficient amount of export करते हो तो आपको import जो है वो और ज्यादा liberalize कर दिया जाएगा। Then export policy. Now as far as export policy is concerned, इसके 3 phases हैं। import policy हमने देख लिया कौन कौन से, 52 to 73, 73 to 83 and 83 to 90। अलग अलग लेवल पे यहाँ पे प्री रिफॉर्म फेज के अंदर ही ये तीनों चल रहे हैं, ठीक है। इंपोर्ट पॉलिसी को लेके जो बेंचमार्क ईयर है दैट इज 1977-78। एक्सपोर्ट पॉलिसी को लेके जो बेंचमार्क ईयर है दैट इज 1990 ओनली, ठीक है। नाउ फेज 1 इज स्टैग्नेटेड एक्सपोर्ट अर्निंग्स, क्योंकि हम ज्यादातर हमारे यहाँ पे कुछ बन ही नहीं रहा तो बेचना क्या है, और थोड़ा बहुत अगर बन रहा है तो उसको बेचने के बजाय डोमेस्टिक इकोनॉमी में रिक्वायरमेंट होती थी। So this particularly improved after the devaluation of rupee in 1961. पहले तो कम था लेकिन करेंसी डीवैल्यू करने के बाद थोड़ा सा बेटर हुआ। अब 2 टर्म्स हैं यहाँ पे, एक है डीवैल्यूएशन, एक होता है डेप्रिसिएशन in terms of currency. Now this is again the bilateral exchange rate happening. Devaluation is when the government by itself reduces the value of its currency as compared to other currencies. So this is done by government. Depreciation is when at the market level, because of demand supply variation, the value of the currency falls by itself. The government has nothing to do with it. Okay, so this is on the basis of demand and सप्लाई, ठीक है। जब हम इंडिया में बोलते हैं ना देयर इज अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, हमने पहले भी इसकी बात की हुई है, या हम ये बोलते हैं और एक्सचेंज रेट इज डर्ट फ्लोट। तो इसका मतलब है कि आमतौर पे तो इंडियन इकोनॉमी की जो करेंसी है, रुपी करेंसी जो है, वो मार्केट के हिसाब से वेरी करेगा। मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से इट विल डेप्रिशिएट एंड एप्रिशिएट, बट समटाइम्स इफ इट फॉल्स टू मच और राइजेस टू मच, then the government can intervene and then the government can either devalue or raise the value of that particular currency. So these are the 2 things that are happening here. Okay, now whenever the currency's value is reduced either through devaluation or depreciation as against the another currency, so what happens? So let's say $1 today is 75 rupees. Just hypothetically we are taking it like this. कल को अगर ये 75 की बजाय 100 रुपए का हो जाता है तो क्या होगा? अब जो बंदा $1 खर्च करके इंडिया से कुछ खरीद रहा था, पहले उसको 75 रुपए की चीज मिल रही थी, अब उसको 100 रुपए की चीज मिल रही है, तो उसके लिए तो करेंसी एडवांटेज हो गई। एंड इफ वी टुडे से गवर्नमेंट सेज कि भाई नहीं, इट इज नाउ 50 रुपीज, अब उसको करेंसी के लेवल पे उतना एडवांटेज नहीं है तो अभी भी एडवांटेज। एडवांटेज कब नहीं होगा? जब $1 1 रुपए का हो जाएगा, तब कोई करेंसी एडवांटेज नहीं है ना। तो अब ये थोड़ा सा इस तरह से है। तो एक्सपोर्ट जब प्रमोट करने होते हैं तो आमतौर पे ये बेनिफिशियल है कि करेंसी को जो है हम उसकी वैल्यू कम कर दें। चाइना ने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्टार्टिंग 1970s टिल 2012, जब तक उसने IMF के SDR के अंदर अपनी करेंसी नहीं लेके आनी थी। फिर आ गया SDR, कोई नहीं, कल के लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो अपनी करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी नहीं बनाना था, ऐसे समझ लो, है ना। तो तब तक उसने टेंशन नहीं ली इसकी, पर वो अपनी करेंसी कम करके रखा और सारे एक्सपोर्ट जो मार्केट्स थे उसको कैप्चर किया, क्योंकि ये करेंसी एडवांटेज वो देता था। इंडिया ये करेंसी एडवांटेज नहीं देता था, और अब जो हमारे साथ हो रहा है वो नेचुरल केस में हो रहा है। इसी वजह से आप देखोगे कि यूएस के साथ अपना एक ट्रेड का जो सरप्लस है वो भी अच्छा खासा आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब यूएस वाले बंदे आते हैं हमारे से सामान खरीदने के लिए, फिर उनको फायदा है हमसे सामान खरीद के,
ठीक है, तो इस तरह से ये ओवरऑल इकोनॉमिक्स जो है ये वर्कआउट करती है एट द एक्सटर्नल लेवल। आई होप करेंसी का सिस्टम समझ आ गया। तो 1961 में पहली बार इंडियन करेंसी वाज डीवैल्यूड। तो कहने का मतलब अगर हमारा $1 वाज इक्वल टू 3 रुपीज, नाउ इट बिकेम $1 इज इक्वल टू 15 रुपीज, यू नो, सो समथिंग लाइक दिस वी डीवैल्यूड, गवर्नमेंट इटसेल्फ डिड इट। ओके, देन फेज 2 एक्सपोर्ट्स वर अकॉर्डेड हाई प्रायोरिटी। तो ये वाले 73 से 83 वाले में अब एक्सपोर्ट्स के ऊपर ज्यादा काम करना शुरू किया हमने। एंड फेज 3 इनिशिएटेड इन दी लेटर हाफ ऑफ सिक्स्थ प्लान, जिसमें हमने और ज्यादा इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी लाने शुरू किए टू प्रमोट द एक्सपोर्ट्स। हम आमतौर पे ये बोलते हैं इंपोर्ट लिबरलाइजेशन और दूसरा एक्सपोर्ट प्रमोशन। ये दो टर्मिनोलॉजी जो है वो आमतौर पे आजकल यूज होती है। अब एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए एफर्ट्स क्या क्या लिए गए? सो फर्स्ट इज ईपीजेड या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स। तो सबसे पहला जो ईपीजेड इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ दैट वाज इन कांडला, गुजरात इन 1965। ये इनफैक्ट एशिया का सबसे पहला ईपीजेड है। नाउ था क्या इसके अंदर? ये एक पर्टिकुलर एरिया में इस तरह से इंडस्ट्री एस्टैब्लिश की गई कि ये पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट के लिए ही प्रोडक्ट्स बनाए। ठीक, देन बड़े सारे ऐसे ईपीजेड्स पर बाद में बने, जैसे कि कांडला, सांता क्रूज, कोचीन, फाल्टा, मद्रास, नोएडा एंड विशाखापट्टनम। सो ऑल ऑफ देम वर देयर। एसेंशियली आपको इनका सिर्फ नाम याद रखना है और लोकेशन याद करनी है, ठीक है। देन ईपीजेड के बाद जो सेकंड आइडिया आता है दैट इज अपेडा और एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जोन्स। हमने एग्रीकल्चर के अंदर भी पढ़ा था। सो 1985 में अपेडा एक्ट बना और उसके बाद इन्होंने क्रॉप फोकस्ड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जोन्स बनाए। ठीक है, कि ये लेट्स से इस जगह पे आम ज़्यादा अच्छे होते हैं या इस जगह पे टमाटर ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो उसको बढ़ावा दिया गया और एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जोन्स बना के उसको एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया गया एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ताकि वो आराम से एक्सपोर्ट हो भी पाए। तो वो सारा एक रेगुलेटरी आर्किटेक्चर यहाँ पे सेट हुआ। देन थर्ड केम योर पोस्ट रिफॉर्म ट्रेड पॉलिसी। तो यहाँ पे अब 1993 90s के बाद का एरिया आ गया। सो देयर वाज अ कमिटी कॉल्ड चेलिया कमिटी which now wanted to further increase your exports। और उसको करने का तरीका क्या था? लिबरलाइजेशन के बाद ना एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई 1990s के अंदर जाके। पहले भी थी बट हम इसको ना मान नहीं रहे थे एक तरह से। वो क्या कि आप ना अकेले इंपोर्ट पे फोकस नहीं कर सकते, आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पे एक ही साथ नजर बनानी पड़ेगी अगर आप दोनों चाहते हो कि इंप्रूव हो आपके। कारण क्या है? जब तक मैं किसी से कुछ खरीदता नहीं, कोई मेरे से भी क्यों कुछ खरीदेगा? तो जब तक मैं इंपोर्ट नहीं कर रहा, एक्सपोर्ट भी कैसे होगा? ओपन इकोनॉमी है तो दोनों एंड से ही ओपन रखनी पड़ेगी। ये आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि भाई मैं इंपोर्ट तो नहीं करूंगा लेकिन एक्सपोर्ट होता रहे। एक्सपोर्ट होता रहे बिना इंपोर्ट किए, ये कैसी कंडीशंस में पॉसिबल है? जब इंपीरियलिस्टिक सिस्टम है या न्यू इंपीरियलिज्म चल रहा है या न्यू कॉलोनियलिज्म चल रहा है, कि आप किसी के ऊपर अपनी पकड़ बना के बैठे हो और वो बंदा आपके हिसाब से ही काम करेगा, तब हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक्सपोर्ट हो रहा है भाई, इंपोर्ट में कुछ नहीं कर रहा। लेकिन आमतौर पे इंडिया जैसी कंट्री को दोनों चीजें साथ में देखनी पड़ेंगी। इसलिए जो भी आया इसके बाद दैट वाज लाइक एग्जिम पॉलिसी, इस तरह से आया एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो हमने बोलना भी उस तरह से, हमारी जो लैंग्वेज है वो धीरे धीरे चेंज होती रही और दोनों के ऊपर काम किया। अब वो देखो कैसे था। सो ड्रास्टिक रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज, ताकि इंपोर्ट ठीक ठाक हो पाए। दिस वाज द रिकमेंडेशन ऑफ चेलिया कमेटी। देन 2001-2 एज पर इंडियाज कमिटमेंट्स टू WTO द रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑल इंपोर्ट्स हैव बीन विड्रॉन। सो जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस या क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हमने लगा करके दी, बंद कर दी। वो जो सिस्टम पूरा बनाया था ना कि भाई ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो सब खत्म हो गया। Then 2007-8 the peak tariff was reduced to 10%। पीक टैरिफ होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज पे इंपोर्ट ड्यूटी सबसे ज्यादा कितनी लगाई जा सकती है, तो वो अब 10% जो है इंपोर्ट ड्यूटी इन जनरल आइटम्स लगाई जाती है, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन एक्सेप्शंस। वो उन्होंने साइड से एक लिस्ट बनाया है। 1990 के आसपास ये पीक टैरिफ 355% भी होता था। ठीक है। देन डीकैनलाइजेशन। तो कैनलाइजेशन क्या था कि आप एक पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के थ्रू ही चीजें मंगा पाएंगे और फिर वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब ये सिस्टम हटा दिया, हर बंदा अपना अपना मंगा ले। ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग दैट वाज स्टार्टेड वाज कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलाने के लिए करेंसी की कन्वर्टेबिलिटी भी तो जरूरी है। अगर मैंने एक देश से दूसरे देश में सामान खरीदना है या बेचना है तो दोनों आपस में करेंसीज का भी आदान प्रदान कर पाए।
इसको अलाउ किया गया इन 1993-94 इन दी ट्रेड अकाउंट। ट्रेड अकाउंट अब आपने बीओपी देख लिया, जहां पे एक्सपोर्ट एफओबी एंड इंपोर्ट सीआईएफ, ओनली दैट मच पार्ट, ठीक है। देन इन 1994-95 इट वाज अलाउड इन इंटायर करंट अकाउंट, तो मतलब जो इनविजिबल्स वाला पार्ट है उसमें भी अलाउ कर दिया फुल करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। लेकिन कैपिटल अकाउंट वाली साइड में आज भी कन्वर्टेबिलिटी 100% नहीं है, सिर्फ करंट अकाउंट में कन्वर्टेबिलिटी 100% है। इसको लेके एक मेजर डर है मन में कि भाई अगर हमने 100% करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कर दी, सॉरी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कर दी तो क्या होगा, वो डर क्या है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं CAC, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। सो CAC पहले होता क्या, so it means freedom to convert rupee into any foreign currency, that is euro, dollar, yen, renminbi, etc. and foreign currency back into capital account transactions। तो मतलब जैसे मर्जी इधर से उधर करेंसी कन्वर्ट करो। अब इसको लेके एक कमेटी बनी है 2 बार। कमेटी का नाम है SS तारापुर कमेटी, पहले 1997 में बनी और फिर 2006 में बनी। दोनों टाइम इसने रिकमेंडेशन जो दी है वो यही दी है कि कैपिटल अकाउंट में फुल कन्वर्टेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब चाहे वो लोन्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे वो NRI डिपॉजिट्स हैं, कुछ भी है, तो हर एक में 100% करेंसी कन्वर्जन, हर करेंसी का दूसरी करेंसी में पॉसिबिलिटी हो, ऐसा आपने काम करना है। लेकिन 2007-8 में अब इसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए। 1990s में ईस्ट एशियन कंट्रीज जो कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल फॉलो करती थी, वहां पे भी क्राइसिस आए। ये क्राइसिस दोनों टाइम लेसन ये देखे गए कि भाई जब भी कैपिटल अकाउंट में फुल कन्वर्टेबिलिटी होता है तो जो FII है या QFI है उसका फ्लाइट ऑफ कैपिटल, मतलब बाहर निकलने की स्पीड ना बहुत तेज हो सकती है और किसी भी तरीके से निकल सकती है। दूसरा, जो FDI है, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसके केस में भी ट्रबल आ सकता है कि अब लेट्स से नॉर्थ कोरिया से FDI आ रहा है उनकी खुद की करेंसी में, हमने क्या करना है भाई, हम वो नॉर्थ कोरियन करेंसी का आगे जाके करेंगे क्या, सोचने की बात है ना। तो इस तरह से कोई भी युगांडन करेंसी इंडिया में FDI आ रहा है, अपने को क्या लेना उस करेंसी से, अपने को किस करेंसी से मतलब है जिसको हम आगे इंपोर्ट करने के लिए यूज कर पाए। यस और नो, दिस इज द क्राइटेरिया। सो वी वुड ट्राई टू लिमिट कैपिटल अकाउंट टू सच एरियाज ऑफ कन्वर्टेबिलिटी wherein the currencies that are coming in through capital account can be utilized in balancing the current account deficit। याद है पीछे हमने पढ़ा था। तो इस वजह से हमने ना उसको पार्शली रखा है, और स्टेबिलिटी को लेवल को भी लेके कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी 100% होना थोड़ा सा डाइसी होता है। अभी भी हमारी इंडियन इकोनॉमी 100% उस चीज के लिए रेडी नहीं है। हालांकि रघुराम राजन जो है वो इस चीज के बहुत बड़े समर्थक हैं कि 100% कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इंडिया में होना चाहिए, और आपको बहुत आर्टिकल्स मिलेंगे। बट IMF खुद अब इसको लेके चिंतित है कि ये किया जाए या ना किया जाए, ठीक है, ध्यान रखना। चले एनी हाउ, हमें डिबेट में नहीं जाना, हमें सिर्फ याद रखना है कि कैसे कैसे चीजें हुई। तो SS तारापुर कमेटी का नाम याद रखना है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के लिए 2 बार बनी, लेकिन अभी भी 100% कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इंडिया में नहीं है। पार्शली वो एग्जिस्ट करती है, किस किस एरिया में एग्जिस्ट करती है मैंने आपके नोट्स में डाल के दिया है, ठीक है। और वो कुछ एरियाज में तो ऐसे ही लगता है कि 100% कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी ही है, और कुछ एरियाज में अभी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस कैसी है वो आई हैव पुट इट इन योर स्लाइड। चलिए नेक्स्ट, अब इंस्टीट्यूशनल मेजर क्या आया एक्सपोर्ट प्रमोशन को लेके, दैट वाज SEZ और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इसको लेके सन 2000 में पॉलिसी आई और सबसे पहले जो EPZ थे उन्हीं को SEZ में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई, और फिर इसको कंसोलिडेट करने के लिए SEZ एक्ट आया 2005 में, क्योंकि लोगों का ना पॉलिसी पे कॉन्फिडेंस नहीं बनता। पॉलिसी तो कभी भी चेंज हो सकती है, लेकिन अनलेस एंड अनटिल वो एक लॉ फॉर्मेट में आ जाए तो फिर वो थोड़ी कंसोलिडेटेड, थोड़ी स्टेबल होती है। So there came the SEZ Act 2005। अब SEZ का भी पर्पस क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन, जिसके लिए जो भी SEZ एस्टैब्लिश करेगा उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स जो है वो सरकार देगी, जिसका ये ब्यूरो है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस है जी फॉर एनी काइंड ऑफ सेटिंग अप ऑफ SEZs, फॉर एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, टैक्स में भी काफी इंसेंटिव्स दिए गए हैं, लाइक दैट। अब कितने SEZs हैं, 2019 31 दिसंबर तक का डेटा मैक्सिमम हमारे पास अवेलेबल है ऑन द वेबसाइट ऑफ SEZs। So 5258 total SEZs are there. They have created some 22,33,000 employment. They have created an investment of around 5,37,658 crore, and they have a lot of export earnings.
तो ये अब फिगर्स रट्टा नहीं मारनी प्रीलिम्स के लिए। इसमें से एक इंसाइटफुल आपने क्या लेना है कि दे आर सब्सटेंशियली कंट्रीब्यूटिंग समवेयर टू इंडियन इकोनॉमी। मेंस के लिए ठीक है ये, प्रीलिम्स के लिए हमें एग्जैक्ट नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ये वाला जो टोटल नंबर ऑफ SEZ है ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है, या नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप याद रख सकते हैं कि ठीक है करीब 22,500 एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, इस तरह से याद रख लो। और करीब 5,000 प्लस या 5200 प्लस हमारे पास SEZs हैं, इस तरह से याद रखोगे सफिशिएंट है प्रीलिम्स के लिए। Then comes your SEZ policy update. Now this committee was set up, बाबा कल्याणी कमेटी। सो 2018 में इसकी रिकमेंडेशंस आई हैं। SEZ में सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा है वो लैंड को लेके रहा है, और इसका ओवरऑल जो एम्फेसिस होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट उसको लेके रहा है। तो उन सारी मुद्दों के ऊपर इन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं। वो रिकमेंडेशंस क्या हैं? There has to be a framework shift from export growth to broad-based employment and economic growth। मतलब SEZ बनाने के पीछे सिर्फ मंशा एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की नहीं, ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ करने की होनी चाहिए। सो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इनक्लेव्स की तरह SEZs चलें। तो दिस इज द 3E, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इनक्लेव। ओके, then formulation of separate rules and procedures for manufacturing SEZs and services SEZs। गुड्स को लेके SEZs के लिए अलग रूल्स हों, सर्विसेज वालों के लिए अलग रूल्स हों। एक्सटेंशन ऑफ सनसेट क्लॉज एंड रिटेनिंग टैक्स और ड्यूटी बेनिफिट्स। तो कोई भी आप उनको बेनिफिट देते हो तो उसके लिए सनसेट क्लॉज मतलब लास्ट डेट यहां तक बेनिफिट मिलेगा, वो बहुत जरूरी है। देन और इसकी एक्सटेंशन भी जरूरी है कि भाई अब इनको अगर आगे प्रोत्साहित करना है कि नए SEZs खुलें तो वो एक टाइम लिमिट और थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। देन ब्रॉड बैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज अलाउइंग मल्टीपल सर्विसेज टू कम टुगेदर। कई बार क्या होता है कि लेट्स से टू प्रोवाइड एजुकेशनल सर्विसेज यू विल नीड मेनी मोर सर्विसेज व्हिच आर अटैच्ड टू इट, मे बी ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सुनो। सो हमारी भी जैसे CBL के अंदर पूरी एक टीम है, देन बैक एंड कोऑर्डिनेशन, सो दैट इज देयर अनदर टीम, है ना। सो देन मे बी देयर इज दिस somebody who is handling the networking thing with you और the overall reach to you। तो ये भी पूरी एक टीम्स हैं जो सिर्फ एक वीडियो अपने आप में सक्षम नहीं है। तो एजुकेशनल सर्विसेज ही लेट्स से एक्सपोर्ट की जा रही हैं वो इंडिया से, पर उसका एक बैक एंड पे बहुत सारी सर्विसेज हैं जो उसको इकट्ठी करनी पड़ सकती हैं, तो इसलिए दे शुड ब्रॉड बेस इट। देन यूनिफाइड रेगुलेटर फॉर IFSC, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। क्या होता है आगे पढ़ेंगे। देन मल्टी सर्विसेज SEZ IFSC ये भी बनाना चाहिए, एंड प्रोमोट MSME पार्टिसिपेशन इन 3Es एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थ्रू एन पर्टिकुलर आर्बिट्रेशन काउंसिल और कोर्ट्स, ताकि जल्दी से ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम मिल जाए। नाउ कम्स योर IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। ये क्या है जी? तो इसको लेके जो सबसे पहले रिकमेंडेशंस आई हमारे यहाँ पे, दैट वाज बाय पर्सी मिस्त्री कमिटी, एंड इन 2008 इट रिकमेंडेड कि मुंबई के अंदर एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बनना चाहिए, जो कि काम क्या करेगा? It will cater to the customers outside the jurisdiction of domestic economy, and they will deal with flow of finances, financial products and services across borders. So London, New York and Singapore, they are already having this IFSC, and we should establish one in Mumbai. But then what happened? Then the elections happened and Modi ji came. And once Modi ji came, so that particular destination shifted to Gujarat, particularly Ahmedabad. So GIFT City was established there. So that is Gujarat International Financial Services Center. Okay, so GIFT Tech City company or corporation that was established, है ना। तो इस तरह से ये हमारा जो है IFSC सेट हो गया। So next comes your foreign trade policy. So foreign trade policy जो इंडिया में अभी लेटेस्ट चल रहा है, that is 2015 to 2020। नया वाला जो है वो हमारे पास अभी आएगा, आना बाकी है, ठीक है, 2020 to 2025। So whenever that comes as a draft, in case before your pre, so वो प्लीज़ आपने अपना अपडेट कर लेना है फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, ठीक है। और हम भी यहाँ पे करंट अफेयर की क्लासेस के अंदर वो कवर करा देंगे, सो डोंट वरी। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे बड़े बड़े टारगेट्स होते हैं जब भी हम पॉलिसी बना लेते हैं ना, कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो $900 बिलियन के आसपास हम ले जाएंगे, और मेक इन इंडिया को हम बूस्ट देंगे। वर्ल्ड एक्सपोर्ट मार्केट में हम अभी 2% के आसपास बैठे हैं, और ये शेयर हम बढ़ा के 3.5% कर देंगे 2020 तक। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट जस्ट उस टाइम पे टारगेट्स थे 2015 में जब बैठ के बना रहे थे। देन FTP टू बी अलाइंड विद मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया काइंड ऑफ एन इनिशिएटिव्स,
and there will be certain kind of convergence or rationalization in the various export oriented schemes which we have created. अब इसमें से जो क्रेडिबल चीज हुई वो ये कि एक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम एक आया जिसने पुरानी चलती सारी स्कीम्स को इकट्ठा करके एक स्कीम बना दी, ठीक है। तो आपने प्री के लिए ये याद रखना कि कौन सी कंबाइन करके एक MEIS बना था। सो दैट इज फोकस प्रोडक्ट स्कीम, फोकस मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्कीम एंड विशेष कृषि ग्रामीण उपज योजना। ये कुल मिला के कुछ स्कीम्स एक MEIS बना दिया गया था, ठीक है जी। देन सेम गोज फॉर सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। इसने भी पुरानी चल रही स्कीम को, उसका नाम था सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम, उसको रिप्लेस किया विच वेंट फ्रॉम 2009 टू 2015 और ये पर्टिकुलर SEIS बना। दोनों ही स्कीम्स के अंदर एक चीज है कि जब भी एक्सपोर्ट करोगे तो इंसेंटिव्स मिलेंगे। वो इंसेंटिव्स देने का तरीका क्या है? आमतौर पे या तो ड्यूटी स्क्रिप्ट्स मिल जाती हैं। ड्यूटी स्क्रिप्ट क्या होता है? इट्स अ पीस ऑफ पेपर, और ड्यूटी पे करने के लिए पीस ऑफ पेपर यूज हो जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी। जब आप नेक्स्ट टाइम कुछ इंपोर्ट करोगे तो उसको पे ऑफ करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी को ये ड्यूटी स्क्रिप्ट आप यूज कर लोगे। सो दैट इज हाउ दे इंसेंटिवाइज द एक्सपोर्ट इन जनरल, ठीक है जी। सो दैट्स हाउ दे गिव। सो देखो, they are incentivized in the form of duty credit scripts at the rate of 3 or 5% of their net foreign exchange earnings. तो जितना वो एक्सपोर्ट करके पैसा कमाएंगे उसके हिसाब से उनको 3% 5% मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन क्या चीज एक्सपोर्ट की है, किसको एक्सपोर्ट की है। Now, next very important part for us is economic integration. Like I said, this should have been the first part, but that's how it is. हमें सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए पहले, फिर ही यहाँ पे आने का फायदा है। अभी आपको पता लग जाएगा ऐसे क्यों। So economic integration होता क्या? It is the unification of economic policies between different states through the partial or full abolition of tariff and non-tariff restriction on trade. अब आपको पता है ना ऑलरेडी कि टैरिफ और नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस क्या हो सकती हैं। इसके लिए ये एंड में है ना। और इससे अल्टीमेटली फर्क क्या पड़ता है? See, they say there is a particular theory of the second best. वो ये कहते हैं the best option is free trade with free competition and no trade barriers whatsoever, ठीक है। बट ये हमेशा हर जगह पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए लेट्स गो फॉर द थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट। वो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्रिएट करने के चक्कर में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। मैं इनका नाम लेके आपको बताता हूँ, ये फिगर आपके पास ऑलरेडी है। सो देयर इज अ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, कॉमन मार्केट, मॉनेटरी यूनियन, फिस्कल यूनियन, customs union, customs and monetary union, economic union, economic and monetary union, and finally complete economic integration. इस तरह से अलग अलग स्टेजेस हैं जिसके थ्रू ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो सकती है। प्रीलिम्स में इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ये आता है कि गुड्स टैरिफ एंड गुड्स नॉन टैरिफ बैरियर, फिर सिमिलरली सर्विसेज टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर, देन कैपिटल, लेबर। ये चार एरियाज वो देखते हैं, गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल और लेबर। इनमें आपके रिस्ट्रिक्शंस किस तरह से है, टैरिफ बैरियर्स किस तरह से है, नॉन टैरिफ बैरियर्स किस तरह से है, ठीक है। फिर पॉलिसीज के लेवल पे भी वो शेयरिंग देखते हैं कि मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी, इनको लेके कितनी अलाइनमेंट है कंट्री के लेके। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब करेंसी और फिस्कल पॉलिसी मतलब टैक्सेशन, तो इन दोनों चीजों को लेके क्या अलाइनमेंट्स हैं। ये कुछ जो पैरामीटर्स हैं इनके हिसाब से विल बी डिस्कसिंग कि अलग अलग स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैसे हो सकती हैं। जो येलो एरियाज है दे रिप्रेजेंट पार्शियल रिलैक्सेशन इन योर टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। ग्रीन एरिया मींस फुल रिलैक्सेशन और रिमूवल ऑफ योर बैरियर्स। नाउ इन अ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, there is only partial relaxation and only in the case of goods, services and capital, ठीक है जी। और उसमें से जब सर्विसेज के अंदर होता है तो हम बोलते हैं TIFA, जो कैपिटल को लेके होता है तो बोलते हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी या BIT, या ट्रेड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, दैट इज TIFA, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। ओके, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, गुड्स के साथ जो टैरिफ बैरियर है 100% हटा देते हैं, लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर्स, सर्विसेज एंड कैपिटल, इनको लेके पार्शियल बैरियर्स रहेंगे, ठीक है। देन
इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उसमें सारे के सारे बैरियर्स हट जाते हैं इंक्लूडिंग कैपिटल तक के। देन कॉमन मार्केट में लेबर को भी अब अलाउड है कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन है तो उसमें ये अलाउड है। शेंजन एग्रीमेंट आता है, SCHENGEN, शेंजन एग्रीमेंट इन यूरोपियन यूनियन, उसके थ्रू लेबर को अलाउड है एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। और टू एन एक्सटेंट जो ब्रेग्जिट हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि यूरोप से चीप लेबर कहीं से भी वहां पे पहुंच जाती है और ब्रिटेन की जो लेबर है उसको नौकरियां नहीं मिलती। फिर इसी तरह से और भी बथेरी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के पंगे देखते हैं आगे। देन दैट इज मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल यूनियंस, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरह की इंटीग्रेशन है। तो मॉनेटरी यूनियन में पार्शियल रिलैक्सेशन है मॉनेटरी पॉलिसी के साथ लेके, ठीक है, एंड फाइनेंशियल यूनियन में फुल रिलैक्सेशन है। Then comes your fiscal union and here you have a full relaxation for both the areas. ये वाला अभी आपने एक्सटर्नल रिलेशंस को लेके ये जो एरिया है इसको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। This much part, just focus on this much part is sufficient for your pre and mains purposes of UPSC as well as state civil services. Okay. Then comes your customs union. तो customs union में गुड्स को लेके जहां पे ग्रीन एरियाज हैं हमारे, there are नो रिस्ट्रिक्शंस, येलो जहां पे है दे आर पार्शली रिस्ट्रिक्टेड। तो इस तरह से आपने इसका स्टडी करना है। क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग आएगा कि कौन सा कहाँ पे अलाउड है, क्वेश्चन कहाँ पे कौन सा नहीं अलाउड है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू रिमेंबर इट। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं PTA, FTA, कॉमन मार्केट एंड कस्टम्स यूनियन एंड कंप्लीट इंटीग्रेशन। ये आप याद रखना, बस बाकी चीजें सेटल्ड हैं आपके लिए, ठीक है जी। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो कलर कोडेड है ये विकिपीडिया से डायरेक्टली इंपोर्टेड है, ठीक है। सो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन है, योर CSME एंड EU, ठीक है। सो दूसरा इकोनॉमिक यूनियन का एग्जांपल अगेन यूरोपियन यूनियन आप लगा सकते हैं। तो अलग अलग उन्होंने कंट्रीज का इस तरह से हमें बताया कि कहाँ कहाँ पे किस तरह की इकोनॉमिक यूनियन है और ट्रेड इंटीग्रेशन है एट डिफरेंट लेवल्स। ओके, बहुत ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। रट्टा या टेंशन किस चीज में लेनी है? भारत कहाँ पे आ रहा है? ये रहा पिंक। सो ये पिंक में देखो, ये तो मल्टीलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं हमारे पास ज्यादातर, ठीक है ना। तो बड़े सारे मल्टीलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, उनकी सबकी मैंने लिस्ट जो है वो एंड में दे रखी है, ठीक है। अपना फोकस सिर्फ इंडिया पे रहेगा इस पर्टिकुलर केस के अंदर। Then again, free trade agreements in the world. So again, India is falling in the green zone. So we have certain free trade agreements or advanced agreements. Then again, World Trade Organization के कौन-कौन से members हैं? तो India is a member country and blue zone में जो है they are the observer countries. Okay? And gray zone में जो है वो non-member ही अभी तक, ये बैठे हैं ऊपर या ये बैठे नीचे। अब यहाँ पे कोई होगा तो member आएगा, है ना। Then ये हमारी लिस्ट ऑफ FTAs है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। इनमें से अब आपने ध्यान किस पे देना है? जो लेटेस्ट है ना वो ध्यान देना है। और जो अब देखो जैसे इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑन ट्रेड, अब ये न्यूज में भी है, तो जस्ट टेक अ लुक। इसमें से पढ़ने वाली चीज क्या होती है आपके लिए? The treaty has been extended for the further period of 7 years and is currently in force till 26th October 2023. A comprehensive review of India-Nepal Treaty of Trade it was initiated in 2018 and is still in progress. Still in progress means 2020, it is still in progress, okay? So it is not an outdated document. This has been put up here from the Economic Survey 2019-2020. वहाँ पे ये सारी लिस्ट जो है एक्सटर्नल सेक्टर वाले चैप्टर में गिवन होती है इन वॉल्यूम 2। तो वहाँ से ये उठा के मैंने ये सारे डाले हैं आपके लिए, जस्ट फॉर योर रिकॉग्निशन से। बहुत इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए, शांत, ओके। देन अब इसमें से कौन सा याद रखना है जी? देखो इंडिया भूटान, इंडिया थाईलैंड, इंडिया सिंगापुर। अब ये दोबारा से न्यूज में था बिकॉज चाइना जो है वो राउंड ट्रिपिंग कर रहा है यहाँ के थ्रू, अपना सामान इंडिया में सिंगापुर के थ्रू भेज रहा है और सिंगापुर के साथ अपना आमतौर पे ट्रेड जो है वो सरप्लस रहा है, लेकिन रिसेंटली ट्रेड डेफिसिट में जा रहा है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे थोड़ा सा रूल ऑफ ऑरिजिन एक क्लॉज को लेके ये न्यूज में था, ठीक है। तो इसलिए ये पर्टिकुलर चीज जो है याद रखनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट पे आ जाइए, इंडिया एशियान सीका, इंडिया साउथ कोरिया सीपा। सीका मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, टर्मिनोलॉजी वेरिएशन है, ठीक है। देन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स, दिस इज फर्स्ट लेवल। सो देयर इज पहला है आफ्टा,
एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये पुराने हैं सारे, इनको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इनमें से। देन कम्स योर ऑनगोइंग ट्रेड नेगोशिएशंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्री के परस्पेक्टिव से, तो याद अगर रखना है कुछ तो ये रखने किनके साथ ऑनगोइंग नेगोशिएशंस अभी चल रही हैं इंडिया की, ठीक है, ओके। ये भी उसी ऑनगोइंग नेगोशिएशन की लिस्ट है और ये भी उसी ऑनगोइंग नेगोशिएशन की लिस्ट है। सो ये सारी लिस्ट जो ऑनगोइंग नेगोशिएशंस हैं इनको पढ़ना है, और इनकी कोई डेट फाइनलाइजेशन की नहीं है, किस लेवल पे ये नेगोशिएशन हो रही है, इसका स्टेटस क्या है, स्टेटस के बारे में जानकारी रखनी है फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। सो दैट्स इट फॉर दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सटर्नल सेक्टर टुडे। इसका जो सेकंड पार्ट है कल के लेक्चर के अंदर करेंगे, उसी में क्वेश्चंस भी एक्सटर्नल सेक्टर के लास्ट 20 ईयर्स के गिवन होंगे, तो वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर पीसीएस एग्जामिनेशन, कीप योर स्पिरिट्स अप। बस इसके बाद हमारा एक्सटर्नल सेक्टर पार्ट 2 रह गया है, फिर हम पंजाब का इकोनॉमिक सर्वे करेंगे और फिर पंजाब का बजट करेंगे, एंड दैट्स द एंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीक जो है आपकी हिस्ट्री जो है वो शुरू हो जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच।